in this chapter, basically the idea of development. What do we mean by development? What are the issues with regard to development? How the narrative of development has changed over a period of time. That is very, that is flow chart that normally, in the answer it is expected. If the question is asked on the development dynamics, you should have that narrative. How the democratic development paradigm has undergone changes since 1950s, है ना. 1950s में ही हम लोग क्या देख रहे हैं कि सीपीए, और एक तरफ सीपीए आया और दूसरी तरफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. Okay, so in the development administration, the concept of development is important. What do we mean by development? How, what is the difference between the growth and development? The economics में whatever we read, again those are very important. Okay, so and then there are different models of development. So what are the different approaches? How the idea of development has been interpreted by different scholars. So then after model क्या होगा? Implement करेंगे, कुछ strategy होगा. What are those strategy? That is the development administration. We should have the, instead of regulatory administration, we should go for developmental administration. So that is idea we'll discuss. How to bring development? What is the instrument which can bring development? That is the main idea. Okay, so in this what we are seeing, the different phases. 1950-60 में क्या होगा? ग्रोथ मॉडल, किनेसियन, जो हम लोग क्या देखते हैं, हैरिड और डोमर मॉडल. तो वहां पे क्या, ग्रोथ मॉडल, स्टेट लेड मॉडल, ब्यूरोक्रेसी लेड मॉडल होगा. And then in 70s, what is the focus? 70s, 80s, there is a lot of focus on basic needs, है ना. The basic need, health, education, welfare. Most of the welfare activities, started during 70s and 80s. And during 80s, what we are seeing again, dominance of market. That means welfare era has changed, है ना. 1980s आते आते क्या देखा? Welfare state has failed. They were looking for loan. So welfare state has, welfare era came to end during 1980s in the most of the countries. Why? Because under welfare era, what we have seen, it was PSU, state monopoly, है ना. State monopoly हुआ. State monopolies क्या हो रहा है? Again, a lot of loans were taken by the developing countries and they were not able to repay. So then World Bank and IMF, they come up with the aid conditionality, है ना. Aid conditionality आया, तो उसके बाद उसी को स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम बोला, या गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव बोला. तो दैट वाज द फेयर, मार्केट एरा. फिर है ना 90s में हम लोग क्या देख रहे हैं? देयर आर लॉट ऑफ डेवलपमेंट विथ रिगार्ड टू ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सब आना ये 90s में ही हुआ. फिर 2008 में क्या देख रहे हैं कि मल्टी, है ना, मिलेनियम डेवलपमेंट बोला है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल. तो एकदम जो डायनामिक्स था डेवलपमेंट का, दैट हैज अंडरगोन फर्दर चेंज. 2015 के बाद तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक पैराडाइम शिफ्ट होता है ना. तो व्हाट वी आर सीइंग, देयर इज सम डिफरेंस विथ रिगार्ड टू सेटिंग द गोल्स, है ना. अर्लियर क्या होगा? टॉप डाउन, है ना, वेस्टर्न सेंट्रिक, एथनोसेंट्रिक. लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हम लोग क्या देख रहे हैं? इट इज नॉन वेस्टर्न सेंट्रिक आल्सो, नॉन, है ना, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, मल्टी डायमेंशनल के साथ साथ क्या होगा? कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, है ना. तीनों सेक्टर, स्टेट, मार्केट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, दे ऑल शुड कम टुगेदर. दिस इज द, क्रक्स ऑफ द चैप्टर्स दैट वी आर गोइंग. डेवलपमेंट मतलब क्या है, मॉडल्स क्या है, और स्ट्रेटजी क्या है. दिस थ्री थिंग्स विल सी. एंड देन फेजेस, है ना, 1950 से लेकर, है ना, 1970 में क्या हुआ, फिर 80s में, 90s में, और 2008 के बाद क्या सिनेरियो. ओके, तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में कंटेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि देखो, मोस्ट ऑफ द नॉन वेस्टर्न कंट्री, दे गॉट इंडिपेंडेंस आफ्टर 1950s, है ना. वर्ल्ड वार 2 को, पोस्ट वर्ल्ड वार क्या देख रहे हैं? पोस्ट वर्ल्ड वार में क्या हो रहा है? इन द पोस्ट, है ना, पोस्ट वर्ल्ड वार 2 सिनेरियो, व्हाट वी आर सीइंग कि मोस्ट ऑफ द कंट्री, दे आर गेटिंग इंडिपेंडेंस एंड दे नीड रैपिड सोशियो इकोनॉमिक चेंज. मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, दैट वाज प्लान, है ना, प्लान सपोर्ट बाय वेस्टर्न कंट्री या जितनी भी वर्ल्ड की एजेंसी है, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, दे वांटेड टू प्रिस्क्राइब सम डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी टू द डेवलपिंग कंट्रीज, है ना. तो दे वर गेटिंग लॉट ऑफ आइडियाज व्हाट, हाउ द डेवलपमेंट कैन बी, कैरीड आउट. देन कॉन्टेक्स्ट क्या? कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमरजेंस क्या देखे ना? इमरजेंस ऑफ डीकोलोनाइज कंट्री, दे वर कंसर्न अबाउट नेशन बिल्डिंग. तो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क क्या होगा? पीस, हार्मनी. यूनाइटेड नेशन का जो आना क्या होता है? पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन ग्लोबल गवर्नेंस की बात करेगा, है ना. तो दे वांट पीस एंड हार्मनी इन द कंट्री. तो टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जा रहा है. सीपीए का इमरजेंस हुआ, है ना, दैट वी हैव सीन इन द अर्लियर क्लास. फिर ट्रेडिशनल फोकस क्या था? मीन्स पे ज्यादा फोकस था. यानी ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन, जो ब्यूरोक्रेसी, बाद में क्रिटिसिज्म भी होगा, है ना, मीन्स ओरिएंटेड होगा. तो बाद में एनपी आता है, इसको बोलता है कि नहीं, गोल ओरिएंटेड, चेंज ओरिएंटेड होना चाहिए. ठीक है. तो डेवलपिंग कंट्री, दे वर लैकिंग द रिसोर्स. मोस्ट ऑफ द नॉन वेस्टर्न कंट्री, दे वर लैकिंग द रिसोर्स एंड देयर वाज लॉट ऑफ नीड ऑफ डेवलपमेंट. टाइम स्पेन कम है. ग्लोबल साउथ और नॉर्थ का जो डिबेट है ना, साउथ इधर है और नॉर्थ यहाँ है. तो दे वांट टू कैच अप विद द नॉर्दर्न कंट्री या डेवलप कंट्री. साउदर्न स्टेट, दे वर लैकिंग टू मच.
तो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजी, मॉडल्स नहीं था, रिसर्च नहीं था. तो दे वर लुकिंग फॉर डेवलपमेंटल मॉडल फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्री, एंड इन दोज कॉन्टेक्स्ट ओनली दे वर प्रोवाइडेड विद दिस आइडिया how development can take place in a developing countries. तो first what is the most important thing, अगर मान लो जो नॉर्दर्न या वेस्टर्न कंट्री है, दे वांट टू प्रिस्क्राइब, है ना, सपोज यू आर ए थिंकर, जस्ट यू कैन इमेजिन यू आर ए स्कॉलर, यू वांट, है ना, तो सपोज यू हैव बीन इनवाइटेड बाय कंट्री लाइक केन्या, है ना, कि प्लीज हेल्प अस इन डेवलपिंग. सो व्हाट विल यू डू? फर्स्ट you will try to understand the dynamics of that country. You will try to understand the socio economic political culture. तो दैट इज द सीपीए. इसलिए क्या होता है, सीपीए और डेवलपमेंट रिलेटेड है, क्योंकि सोसाइटी का डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर जो है उस कंट्री का, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वो समझना जरूरी है. अब केन्या है, जापान है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर कल्चर, सोशल पर्सपेक्टिव, एवरीथिंग. तो वही है कि एकेडमिक ओरिएंटेड होगा, है ना, थिंकर्स आएगा, अलग अलग कंट्री को पहले क्या करेगा, स्टडी करेगा, देखेगा वहां पे प्रॉब्लम क्या है. तो डेवलपमेंट इन जनरल क्या है, प्लान डेवलपमेंट. या तो सपोज व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? दिस इज वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. इट इज ए प्लान डेवलपमेंट और इट इज एडमिनिस्टर्ड डेवलपमेंट. ओके. तो व्हाट विल हैपन, दे विल फॉर्मुलेट स्कीम, पॉलिसी, प्रोग्राम, रैपिड सोशियो इकोनॉमिक चेंज आना चाहिए. तो अलग अलग इंडिया के अंदर क्या, यूएल गोस्वामी ही इज सेड दैट ही कॉइन्ड द टर्म डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. लेकिन क्या है, इस पे भी डिबेट चलता रहता है. नहीं, वाइडनर बोलता है नो, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, तो वाइडनर को क्रेडिट करते हैं या गैंट को करते हैं. तो चेंज ओरिएंटेड होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड और एक्शन. यानी ब्यूरोक्रेसी को क्या होना पड़ेगा, चेंज ओरिएंटेड होना पड़ेगा, गोल ओरिएंटेड और एक्शन ओरिएंटेड. Again you find the same feature in the western country in the form of new public administration. That's why we say in the western country it was new public administration, and in the non-western country, that is the developing country, it was development administration. Both had similarity, है ना. इस पे क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन you should be prepared कि क्या है डिफरेंस, वो होना चाहिए. और जो गैंट ने भी कहा भाई पर्पस क्या है, गोल ओरिएंटेड, चेंज ओरिएंटेड. लॉयलिटी किसके, लोगों के प्रति है नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति है नहीं है ना. उसके एटीट्यूड क्या है लोगों का, वेदर दे आर सर्विस एटीट्यूड है ही नहीं है. देयर शुड बी लॉयलिटी टू द पीपल रेदर देन इंस्टीट्यूशन. एटीट्यूड क्या, आउटलुक, आउटवर्ड है या इनवर्ड है. तो अगेन दोज आर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑन व्हिच वी कैन डिसाइड वेदर इट इज डेवलपमेंट ओरिएंटेड और नॉट. रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, चेंज ओरिएंटेड, सिटीजन पार्टिसिपेशन होना चाहिए. अब उसके बाद क्या था, जैसे हमने वाइडनर का देख लिया, है ना, तो दीज आर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. यू शुड बी एबल टू, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं तीनों पे, वाइडनर और गैंट और रिक्स का जो आइडिया. रिक्स बोलता है भाई ये जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इसके दो कंपोनेंट, कि एडमिनिस्ट्रेशन का भी डेवलपमेंट होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी नहीं रहेगी, इंस्ट्रूमेंट हैज नो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, विल इट बी एबल टू डिलीवर, है ना. अगेन प्रॉब्लमेटिक. अगर इंस्टीट्यूशन ही कमजोर है तो विल इट बी एबल टू एडमिनिस्टर डेवलपमेंट? No, it is not possible. That's why he emphasized on developing the administrative system. There should be enhancement of capacity building होना चाहिए, तभी जाके डेवलपमेंट को एडमिनिस्टर करना आसान हो जाता है. ठीक है. तो देयर आर टू कंपोनेंट, वन इज डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एंड देन ओनली इट कैन ब्रिंग द डेवलपमेंट. यही है कि यानी डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट. दैट मीन्स कैरिंग आउट द डेवलपमेंटल प्रोसेस. ओके, एडमिनिस्ट्रिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन हो गया. तो दिस टू आर एग एंड चेक, है ना, चिकन एंड एग टाइप रिलेशनशिप होता है, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है. तो इधर अगर है, दिस इज द साइक्लिक रिलेशन, सिम्बायोटिक रिलेशन, एग एंड चिकन टाइप रिलेशन. ठीक. तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट वाज द फोकस? तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटी बिल्ड करना पड़ेगा. दे नीड टू बिल्ड रिसोर्सेज, दे नीड टू ट्रेन पीपल, है ना. जैसे अभी क्या मिशन कर्मयोगी चल रहा है ना. तो मिशन कर्मयोगी क्या है, ऑन जॉब ट्रेनिंग है, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी बन पाए. और डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी बनाना जरूरी है ना. तो रिक्स के लिए, रिक्स का जो मेन आइडिया है ना, तो दोनों को समझना जरूरी है. और रिक्स ने डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन किया, कि जिस कंट्री में डिफरेंशिएशन है, दैट मींस डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन, देयर शुड बी फर्दर डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, एंड देयर शुड बी प्रॉपर इंटीग्रेशन, दैट मींस कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए. इंटीग्रेशन का आइडिया क्या देखा कल हमने, कि कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन. डिफरेंशिएशन मतलब डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन. ओके. तो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट में हम लोग क्या देखें, कि कैन एडमिनिस्टर्ड बी डेवलप, है ना. तो क्योंकि रैपिड, तो दैट मींस इट हैज बीन बिलीव दैट यस एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी एडमिनिस्टर्ड,
है ना। तो डिमांड एंड सप्लाई है गैप को फुलफिल करने के लिए डेवलपमेंटल में डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, कोई डिफ्रैक्शन बोला, किसने, रिक्स ने बोला है। तो रिक्स आइडिया ऑफ डेवलपमेंट इज डिफ्रैक्शन, है ना। तो डिफ्रैक्शन में डिफरेंशिएशन भी हो रहा है प्लस इंटीग्रेशन में वो भी हो रहा है, ठीक। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, नॉन टेक्नो, इंटीग्रेशन का जो मीनिंग है ना डेवलपमेंट में, इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया। दैट मीन्स पीपुल आर एबल टू पार्टिसिपेट, people है ना, people will be able to participate, that means people have the ability and they are also willing. More, for example, suppose there is a society where people are not willing to participate despite ability. For example, है ना, मेट्रो सिटीज में क्या है, people are not interested in the governance process, or maybe some cities where people are able, they have the ability and they also have the willingness. Participation होना जरूरी है। एंड देयर शुड बी आल्सो प्रेजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, है ना। पेनिट्रेशन मतलब क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है और बिहेवियर है, ठीक। तो रीग हैज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट थ्रू द फिनोमेना ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक। लेकिन अमर्त्य सेन का आइडिया बिल्कुल अलग है। अमर्त्य सेन क्या बोलता है, डेवलपमेंट मीन्स फ्रीडम, ओके। तो डेवलपमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है, अगेन दीज आर द अगेन कॉमन थीम, चाहे एनपीएम में भी हम लोग क्या देखे, या एनपीए का थीम है, एनपीएम का थीम है, न्यू पब्लिक सर्विस का थीम है ना, कंपैरेटिव पवेट का जो थीम है। तो अगेन ऑल आर ओवरलैपिंग। तो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक, यू डोंट हैव टू रिमेंबर, है ना, दीज ऑलरेडी यू नो इट, है ना, दीज आर द फीचर्स दैट शुड बी ऑलरेडी इन योर माइंड। तो डिफरेंस क्या है ट्रेडिशनल में और डेवलपमेंट में। तो ट्रेडिशनल टॉप डाउन हायरार्कियल अप्रोच, रूल ओरिएंटेड, मींस ओरिएंटेड, एफिशिएंसी पे फोकस है, इनवर्ड लुकिंग है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डेवलपमेंट इज डिसेंट्रलाइज, है ना। टॉप डाउन हायरार्किकल अप्रोच से बदले फ्लेक्सिबल मॉडल आ रहे हैं, डिसेंट्रलाइज आ रहे हैं, एक्शन गोल ओरिएंटेड है, चेंज ओरिएंटेड है, इकोलॉजिकल मॉडल है, इधर नॉन इकोलॉजिकल था। तो यू कैन रिमेंबर 2-3 डिफरेंसेस, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं। चेंजिंग प्रोफाइल में क्या होगा, अलग अलग फेज देखेंगे। वही 1950s में क्या था, है ना, 50 से 70, फिर 70 से 80 में क्यों डिक्लाइन हुआ, फिर 80s के बाद मार्केट फ्रेंडली अप्रोच हुआ, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, रीगनिज्म, थैचरिज्म जो हमने देखा। फिर 2000 के बाद क्या देख रहे हैं, अगेन इंक्लूसिव नियो लिबरल, जो ह्यूमन रिसोर्स इनइक्वालिटी ये सब देख रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस है, सोशल डेवलपमेंट पे भी फोकस है, ओके। तो फेज 1 में क्या देख रहे हैं, एरा ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं, क्योंकि वहां पे क्या था कि जितने भी है ना, रिक्स और वाल्डो ये सब आया, तो बोला एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बिल्ड करो। ट्रूमैन प्लान मतलब वेस्ट इज बेस्ट, आई विल प्रोवाइड द टेक्निकल असिस्टेंस, यूएन प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सपोर्ट। So, except East Asian tiger, most of the country they followed the, Western model of development. वाइडनर का जो आइडिया है, ब्यूरोक्रेसी लेड डेवलपमेंटल अप्रोच। इंडिया में क्या है, हम लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए, नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम चलाए। तो दे वर बेस्ड ऑन ब्यूरोक्रेसी लेड डेवलपमेंटल अप्रोच। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बिल्ड करें, दे विल स्टेट थॉट इफ वी हैव द वेरी साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड दे विल बी एबल टू कैरी आउट द डेवलपमेंटल प्रोसेस, है ना। तो दैट वाज आइडिया, एक्सेप्ट एशियन टाइगर दे वर वेरी सक्सेसफुल लेटर ऑन। फेज 2 क्या डिक्लाइन हुआ, क्यों, कि भाई वेलफेयर स्टेट तो फेलियर हो रहा है, दे वर नॉट एबल टू, मोनोपोली आ गया। तो क्रिटिसिज्म है, फॉर्मलिज्म, ब्यूरोक्रेसी में क्या, रेटिफिज्म, फॉर्मलिज्म, थ्योरी में कुछ है, प्रैक्टिस हो रहा है कुछ और। तो डॉक्टर पेशेंट टाइप का रिलेशनशिप हो गया, वेस्टर्न कंट्री वेर लाइक ए डॉक्टर एंड नॉन वेस्टर्न कंट्री वेर लाइक द पेशेंट, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी का रोल इंक्रीज हुआ, ब्यूरोक्रेटाइजेशन हुआ, टू मच सेंट्रलाइजेशन फॉर एवरीथिंग, पीपल आर डिपेंडेंट ऑन ब्यूरोक्रेट्स, पीपल हैव बीन डिसएम्पावर्ड। तो अब क्या होगा, लोगों को पार्टिसिपेशन भी नहीं हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी इज टू मच इलीट ओरिएंटेड। जो ब्यूरोक्रेसी का जितना भी क्रिटिसिज्म है, यू कैन मेंशन दैट। फेलियर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्यों, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी लेड किया, है ना। तो ब्यूरोक्रेटाइजेशन दैट वाज अगेन फेलियर। एग्जांपल इंडिया के देखो, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। एलियनेटेड मॉडल क्यों, पीपुल, नॉन इकोलॉजिकल मॉडल है, टॉप डाउन अप्रोच, है ना, टॉप डाउन ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, कॉपी पेस्ट वाला जो अप्रोच होता है। अगेन इट वाज नॉट पीपल सेंट्रिक, दैट्स व्हाई इट हैज फेल्ड। इसलिए क्या बोलते हैं, 1970s का जो डिकेड है, इट इज अ डिकेड ऑफ फेलियर। तो फिर कोल्ड वॉर स्ट्रेटेजी में भी देख रहे हैं कि रेजिम चेंज किया जा रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रहा है। जो फ्रेंडली कंट्री है वहां पे यूएस है ना सपोर्ट कर रहा है, जो नहीं है वहां पे टर्मोइल क्रिएट कर रहा है, प्रोटेस्ट क्रिएट कर रहा है, रेजिम चेंज कर रहा है। तो दैट वाज अगेन प्रॉब्लमेटिक। एंड देन व्हाट वी आर सीइंग, टू मच एकेडमिक ओरिएंटेड। तो इसलिए रिक्स को बोलता है, रिक्स क्या बोलता है इसको, इंटेलेक्चुअल इम्पैसी, है ना। अगर ये क्वेश्चन आता है, इसका मतलब क्या, नॉर्मली क्या होता है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर प्रैक्टिस ओरिएंटेड, है ना। तो प्रैक्टिस ओरिएंटेड होना चाहिए, नॉन एथनोसेंट्रिक, यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज का नीड है उसके हिसाब से होना चाहिए। बट दे वर टू मच एकेडमिक, है ना। सीपीए में भी यही क्रिटिसिज्म भी है, टू मच एकेडमिक हो गया। तो इट वाज इंटेलेक्चुअल एम्पैसी, ठीक। इट शुड बी एक्शन ओरिएंटेड।
तो दो टाइप का, टू टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी को क्या बोलते हैं, दे आर सुटेबल फॉर द स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन डेवलपमेंट के लिए क्या होगा, वी नीड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। नॉर्मली वी ब्यूरोक्रेसी क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया करता है और डेवलपमेंट में फेल करता है ना। लाइक शानवाज सर ने एग्जांपल जो दिया था कि जो इंडिया में, इफ यू लुक एट ऑब्जर्व द इंडियन ग्रोथ स्टोरी, इंडिया में हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द इनोवेटिव डेवलपमेंटल मॉडल्स वेर ब्रॉट बाय द नॉन ब्यूरोक्रेट्स, है ना। चाहे है ना मिल्क रिवॉल्यूशन है या ग्रीन रेवोल्यूशन है, तो दे वर ब्रॉट बाय नॉन ब्यूरोक्रेट। एंड बट इन द फील्ड ऑफ रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक द सीएजी है, इलेक्शन कमीशन है ना, तो ऑल दीज फंक्शंस ब्यूरोक्रेट हैव डन वेरी गुड इन द रेगुलेटरी फंक्शंस। तो इंडिया में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेम ब्यूरोक्रेट हु वर परफॉर्मिंग रेगुलेटरी फंक्शन अंडर द colonial state, they were given additional responsibility of carrying out administering the development। एंड ऑब्वियसली क्या होगा, उसका ट्रेनिंग कैसा हो रहा है, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, तो इसलिए लाइसेंस परमिट कोटारा अप्रोच हो गया। एवरीथिंग वाज ऑब्स्ट्रक्टेड, डेवलपमेंटल प्रोसेस इज मोर पीपल ओरिएंटेड, इकोलॉजिकल, तो इसलिए क्यों ये फेलियर हो गया। फिर एशियन टाइगर्स हम लोग क्या देख रहे हैं, वहां पे जो स्ट्रेटेजी, डिफरेंट स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया गया, तो वहां के इकोलॉजी के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से, एंड बाय 90 है ना, बाय 1990 दे वर वेरी सक्सेसफुल, बट 1997 अगेन दे कोलैप्स। ओके, तो नाइनटी एटीज में हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट फ्रेंडली अप्रोच आ गया। 1980s का जो दौर है, रोल बैक ऑफ द स्टेट, जो एनपीएम का दौर है, एलपीजी का दौर है ना, पब्लिक चॉइस अप्रोच है, तो अलग अलग नाम है ना, गुड गवर्नेंस का, एड कंडीशनैलिटी, ये सब देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट को प्रमोट किया जा रहा है। स्ट्रॉन्ग स्टेट वर्सेस मार्केट जो डिबेट हमने देखा है ना, उसमें भी क्या है, मार्केट को प्रमोट किया जा रहा है। तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है, रोल बैक ऑफ द स्टेट है यहाँ पे। और इस समय क्या दिख रहे हैं, 1980s में भी एंटी डेवलपमेंट थेसिस आता है कि दे वर क्रिटिकल ऑफ द मॉडर्न्स, मॉडल्स दैट वर सजेस्टेड बाय द वेस्टर्न कंट्री, दे वर क्रिटिकल ऑफ दोज मॉडल्स। तो इसलिए ये यहाँ पे देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ह्यूमन डेवलपमेंट, जेंडर, इन्वायरमेंट, तो दोज मॉडल्स इंडिया में क्या 73rd 74th मॉडल आया, ताकि डेमोक्रेटिक सिस्टम आए, डेमोक्रेटाइजेशन हो, लोगों का पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, तो अब ये फोर्थ जो फेज है, फोर्थ फेज में क्या होगा, पोस्ट एनपीएम फेज भी है ना, रिलेट कर सकते हैं इसमें। न्यू वेबरियन स्टेट का है, न्यू पब्लिक गवर्नेंस का है, गुड गवर्नेंस का है ना। तो इसमें क्या है, यूएनडीपी ने जो मॉडल दिया, ओईसीडी ने मॉडल दिया, तो हम लोग क्या देख रहे हैं 2000 के बाद, व्हाट वी आर सीइंग अगेन, मेजर चेंज इज वी आर आल्सो फोकसिंग ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, है ना, पीपल इंक्लूसिव अप्रोच होना चाहिए, न्यू लिबरल मॉडल। तो गांधीयन मॉडल भी है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और एनपीएम के आइडिया को इंक्लूड करते हैं, तो दे आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन एनपीएम और डेवलपमेंट और गांधीयन मॉडल, तीनों को इंटीग्रेट कर दिया। देयर इज लॉट ऑफ कन्वर्जेंस, ओके, दैट वी आर सीइंग इन द फोर्थ फेज। तो इसमें क्या फीचर है, यू शुड बी एबल टू ब्रिंग आउट सम फीचर कि कंप्लीट स्टेट कैन नॉट बी कंप्लीटली विथड्रॉन, क्योंकि स्टेट हैज रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स पीपल, मल्टी डायमेंशनल होना पड़ेगा। नेटवर्क गवर्नेंस का एरा आ गया, सिविल सोसाइटी हैज ग्रेटर रोल इन द टुडेज टाइम। पोस्ट डेवलपमेंट मॉडल हमने क्या देखा, 1980s में क्या हुआ था, जो वेस्टर्न मॉडल है उसके खिलाफ कई सारे लोग आ गए, तो उसको हम लोग एंटी डेवलपमेंट थेसिस बोलते हैं। तो एक और डेवलपमेंट होता है जिसको हम लोग पोस्ट डेवलपमेंट अप्रोच या मॉडल्स बोलते हैं। तो यही है, पोस्ट डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, द कॉन्सेप्ट हैज बीन रीडिफाइंड, तो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक हैज बीन रीडिफाइंड, नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ नियोलिबरल, इंक्लूसिव नियोलिबरल अप्रोच। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। नियोलिबरल मॉडल तो पब्लिक चॉइस और न्यू राइट फिलोसफी ले आया, एनपीएम ले आया, लेकिन इंक्लूसिव क्या है, जो सोशल जस्टिस है ना, न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच भी बोलते हैं, है ना, तो अगेन दे आर रिलेटेड टू इट। फिर कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, वेस्टर्न कंट्री में क्या होगा, एनपीए बोलते हैं, और डेवलपिंग कंट्री के लिए हमने क्या देखा, दे आर रिफर टू द डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप कंट्री में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों गोल ओरिएंटेड, चेंज ओरिएंटेड, सोशल जस्टिस, वैल्यू वैल्यू, है ना। तो कंसेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है इन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन फेल्ड बिकॉज इट फेल्ड टू गेट डेवलप डेवलपमेंट ब्यूरोक्रेसी एग्जामिन करना है। अब देखो एग्जामिन करना है, दैट मींस यू हैव टू राइट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यू हैव टू क्रिटिसाइज इट, है ना। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन फेल्ड बिकॉज इट फेल्ड टू गेट डेवलपमेंट ब्यूरोक्रेसी, है ना। तो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो था, दैट वाज रेगुलेटरी परफॉर्मिंग रेगुलेटरी फंक्शन, एंड दे वर गिवन द डेवलपमेंटल फंक्शंस, but they failed because bureaucracy failed to change, failed to reform. Bureaucracy became the biggest obstacle in the developmental process, that is the idea, है ना। तो हम मोस्टली क्वेश्चन का जो थीम होगा, that will be related to proving this statement with some example facts।
क्रिटिकली एग्जामिन अगर होता तो यू हैव टू निगेट द स्टेटमेंट। यहाँ पे ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट कंप्लीटली फेलियर है, तो वो थोड़ा सा अगर चाहो तो अल्टरनेट पर्सपेक्टिव यू कैन ब्रिंग आउट। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि भाई सेकेंड हाफ में 20th सर सेंचुरी। हाँ हाँ प्लीज। सर ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी ब्यूरोक्रेसी लेड था, और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी, तो हाँ फर्क क्या है ट्रेडिशनल सर? जो, हाँ थोड़ा फर्क है, वो स्टेबिलिटी और, है ना, लॉ एंड ऑर्डर, स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर के लिए था ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी। वेवेरियन ब्यूरोक्रेसी जो वेस्टर्न कंट्री में आया, उसका पर्पस क्या था, स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर होना चाहिए। जो नॉन वेस्टर्न कंट्री है, वहां पे हमने क्या हुआ, वेवेरियन ब्यूरोक्रेसी अडॉप्ट किया, लेकिन उसका पर्पस क्या था कि डेवलपमेंट, रैपिड सोशियो इकोनॉमिक चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो ट्रेडिशनल सेंस में तो ये हो गया, जो वेस्टर्न हम लोग मॉडल देखते हैं ना, वेवेरियन ब्यूरोक्रेसी का जो कोर फीचर्स है, रेगुलेटरी फंक्शन, डिटेंट, पैरामेडिकल, और उसका पर्पस स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर था। लेकिन जो मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी है, जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमने देखा, दैट इज गोल ओरिएंटेड, चेंज ओरिएंटेड। यहाँ पे भी देखो, अभी जो हमने कंपैरिजन देखा एनपीए और डेवलपमेंट में, क्या है, दे आर गोल ओरिएंटेड, चेंज ओरिएंटेड, आउटवर्ड। ये आइडिया है। आर यू एबल टू गेट इट? यस सर। हाँ, तो ये मेन है कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसमें चेंज आया, और उसका जो पर्पस एनपीए से मैचिंग है। तो अल्टीमेटली दैट्स व्हाई वी रिलेट इट। फिर इसी को वही एक मॉडल्स जो है हम देखो, अलग अलग मॉडल। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, तो मान लो ना, सेम जैसे ब्रिटिश का जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था, है ना, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, दे वर वेरी गुड एट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, रेगुलेटरी फंक्शन में बहुत अच्छा काम कर रहा था, एंड दे वर गिवन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो India, what we are seeing, the same bureaucracy which performed the regulatory function, they were given additional responsibility of carrying out developmental process, because India lacked the alternative institution। क्योंकि जो एनपीए भी आया था, तो एनपीए तो ब्यूरोक्रेसी पे ही डिपेंडेंट है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड, चेंज ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड के लिए। तो दैट वेवेरियन ब्यूरोक्रेसी वाज प्रिस्क्राइब्ड एज ए आइडियल मॉडल, आइडियल ब्यूरोक्रेसी, कि भाई ब्यूरोक्रेसी विल बी एबल टू कैरी आउट डेवलपमेंटल प्रोसेस। एंड बट सून इट वाज रियलाइज, 1970 आते आते रियलाइजेशन हो गया कि ब्यूरोक्रेसी अगेन बिकमिंग द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन कैरिंग आउट द डेवलपमेंटल प्रोसेस, है ना। तो देयर इज अ नीड टू चेंज द फोकस, स्ट्रेटजी एंड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो पहला फेज ग्रोथ, क्वांटिटेटिव अप्रोच था, मतलब ग्रोथ पे फोकस था। 70 आते आते इंडिया में भी हम लोग क्या, बेसिक नीड, है ना, जो 20 पॉइंट प्रोग्राम इंदिरा गांधी ने लेकर आया, गरीबी हटाओ। फिर 80s में हम लोग देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वाशिंगटन कंसेंसस से एड कंडीशनैलिटी, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। 90s के बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस आने लगा, और अब तो क्या हो गया, मल्टी डायमेंशनल हो गया 2000 के बाद। तो यू कैन यूज, है ना, टेबुलर फॉर्मेट, यू कैन मीज, पिरामिडिकल स्ट्रक्चर। तो ये मतलब दीज आर द वे टू रिप्रेजेंट, है ना। तो यू शुड हैव दैट फ्लो चार्ट इन योर माइंड। तो बाकी लोग ने जैसे नॉन वेस्टर्न कंट्री में स्टडी किया, तो यहाँ पे क्या देखा, भाई एवरी सोशल सिस्टम इज डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या है कि देर आर इकोनॉमिक फैक्टर एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर दैट आर इम्पैक्टिंग द डेवलपमेंटल प्रोसेस। रिक्स ने भी क्या बोला कि इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ ऑटोनॉमी, जो बाद में अमर्त्य सेन क्या बोलता है, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, कैपेबिलिटी अप्रोच। अमर्त्य सेन का काफी पॉपुलर है कैपेबिलिटी अप्रोच। तो ह्यूमन कैपेसिटी बिल्ड करना है। अमीवा टाइप बोला कि भाई कहीं पे फैलना है, कहीं पे श्रिंक होना है, स्टेट शुड नॉट श्रिंक एंड स्प्रेड एवरीवेयर। तो श्रिंकिंग एट द सेम टाइम स्प्रेडिंग आल्सो। तो कहीं हम जहाँ पे वेलफेयर का काम है ना, सोशल जस्टिस का काम है, वहां पे स्टेट को आना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक डोमेन है, वहां पे स्टेट को आना पड़ेगा। जहाँ पे डेवलप मार्केट लाइक अप्रोच है, वहां पे पीएसयू में बहुत सारा मोनोपोली, उसको हटा के तो अमीबा टाइप अप्रोच बता दिया। तो ब्रॉडर, मतलब डेवलपमेंट टुडे इज मच ब्रॉडर, मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड मल्टी डायमेंशनल, है ना। तो देर सेम आइडिया। अब क्या होगा, 1950 मॉडल्स क्या क्या है ना, हमने कंसेप्ट देखा, फेजेस देख लिया, ये क्या था, these are the concept how the profile of development has undergone change। अब देखते हैं मॉडल्स क्या क्या सजेस्टेड था। तो पहला मॉडल क्या था कि 1950 में देख रहे हैं, वेस्टर्न कंट्री दे वर लाइक डॉक्टर, है ना, डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है कि विल प्रोवाइड यू सम प्रिस्क्रिप्शन, फॉलो इट एंड यू विल बी फाइन। तो सिमिलरली व्हाट हैपेंड, western country, they were a non western country, developing country, they went to western country and they told, है ना, we will provide you a strategy model। तो उसी को हम लोग डेवलपमेंट थेसिस भी बोलते हैं। यही डेवलपमेंट थेसिस बाद में जाके इसको जो काउंटर करेगा, उसमें उसको क्या बोलते हैं, एंटी डेवलपमेंट थेसिस। यानी ऑल दीज डेवलपमेंटल थेसिस आर नैरो इन पर्सपेक्टिव, दे आर नॉट सुटेबल फॉर द नॉन वेस्टर्न कंट्री। डेवलपिंग कंट्री में नीड जेंडर है, इन्वायरमेंट है ना, तो इंक्लूजन का ज्यादा है, इक्विटी का ज्यादा है, सोशल जस्टिस पे फोकस होना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो वही काउंटर है, देखो आर यू एबल टू रिलेट इट, है ना। इसको क्यों यहाँ पे डेवलपमेंट थेसिस बोलते हैं, और बाद में 1980s का जो डेवलपमेंट है, कई सारे अल्टरनेट व्यू जो आया,
उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं एज ए एंटी डेवलपमेंट थेसिस। कई सारे मॉडल्स उसमें हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। तो 1960 में रियलाइज क्या हुआ, वी आर फर्दर डिपेंडिंग ऑन द वेस्टर्न कंट्री। डिपेंडेंसी किस लिए है, टेक्नोलॉजी के लिए है, फाइनेंस के लिए है, स्ट्रेटजी मॉडल्स के लिए। तो एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग वी वर डिपेंडेंट ऑन वेस्टर्न कंट्री। 1970s में देख रहे हैं पूरा वर्ल्ड एक सिस्टम है। तो वर्ल्ड में कैसे है ना, वेस्टर्न कंट्री दे वर लाइक एज ए कोर, अब पेरीफेरी में बाकी सारे स्टेट है ना, डिपेंडेंसी बढ़ गया। 80s में 90 है ना, मार्केट फ्रेंडली अप्रोच। और ये तो पांचों मॉडल आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी में क्या देख रहे हैं, पहले तो 1930s में हम लोग ऑलरेडी देख रखा है, कीनेसियन मॉडल आया है ना, कीनेसियन इकोनॉमिक्स आया, उसमें वेलफेयर एरा, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आ गया। स्टेट लेड डेमो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, दैट वाज बेस्ड ऑन हैरेड डोमर मॉडल। फिर जीएनपी मॉडल जो क्वांटिटेटिव ग्रोथ मॉडल, क्वांटिटेटिव मॉडल है ना। अचीवमेंट मोटिवेशन जो है, हम लोग क्या अचीवमेंट मोटिवेशन मॉडल भी देखे, भाई अचीव करेंगे पीपल विल बी मोटिवेटेड, गवर्नमेंट विल बी मोटिवेटेड, नेक्स्ट टारगेट सेट किया जाए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विथ वेस्टर्न कंट्री विल प्रोवाइड द टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या देख रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पर कैपिटा इनकम, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। तो मॉडर्नाइजेशन, पर कैपिटा इनकम इन बढ़ा दो, क्वांटिटेटिव अप्रोच होना चाहिए। तो दैट वाज फर्स्ट फेज। दूसरा 1960s में क्या देख रहे हैं, कई इट वाज एक्सपोज कि हाउ पीपल नॉन वेस्टर्न कंट्री दे आर बीइंग एक्सपोज, बीइंग मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन द वेस्टर्न कंट्री। डिपेंडेंसी थ्योरी आ गया, इसको प्रूव जैसे कई सारे स्कॉलर्स ने जब स्टडी किया नॉन वेस्टर्न कंट्री में, दे फाउंड आउट इट वाज नॉट सुटेबल बिकॉज इट वाज नॉन इकोलॉजिकल, है ना। तो यहाँ पे क्या, इंस्टीड ऑफ बेनिफिटिंग फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्री दे वर लूजिंग इट, है ना। क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्री दे आर वेरी स्मार्ट, है ना, दे विल यूज आवर रिसोर्सेस एंड दे विल टेल दैट या वी आर डेवलपिंग। जैसे व्हाइट मैन्स बर्डन का कॉन्सेप्ट लेकर आ गया, है ना, ब्रिटिशर्स के अपने जस्टिफाई किया था कॉलोनाइजेशन को, पीपल आर बैकवर्ड इलिटरेट एंड वी विल कम हियर, वी विल डेवलप यू। तो है ना, इस तरह से प्रेजेंट करता है, मॉडल बनाता है कि वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर डिपेंडेंट। तो ये आइडिया कोर पेरिफेरी का आ गया, ठीक। तो कोर पेरिफेरी में देख क्या होता है कि जो डेवलप कंट्री है ना, देवर ऑन द इन द कोर, एंड नॉन वेस्टर्न कंट्री देवर आइदर इन द पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी, है ना, एक और होता है। तो सेमी पेरिफेरी से पेरिफेरी की ओर जा रहा है। तो ये कैटेगराइजेशन है ना, नथिंग मच टू अंडरस्टैंड। सैटेलाइट टोन क्या होता है, डेवलपिंग कंट्री बेसिकली सैटेलाइट टोन्स वेर दे वर प्रोवाइडिंग ऑल द रिसोर्सेस, है ना। मान लो ये है ना डेवलप कंट्री है, तो ऑल द रिसोर्सेस वेर अवेलेबल, मेड अवेलेबल। टेक्नोलॉजी का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन में यूज किया जा रहा है। देयर वाज ड्रेन ऑफ वेल्थ। सिमिलरली है ना, इंडिया आल्सो हम लोग व्हाट वी आर डिड ड्यूरिंग द कॉलोनाइजेशन, देयर वाज ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो सेम आइडिया, कोर एंड पेरिफेरी मतलब वी आर सर्विंग द कोर कंट्रीज, ओके, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द। दैट्स व्हाई देयर वर अल्टरनेटिव मॉडल, साउथ साउथ कोऑपरेशन क्यों इमर्ज हुआ, ध्यान आफ्टर द रियलाइजेशन की दीज नॉर्दर्न कंट्रीज आर वेरी स्मार्ट, है ना। दो डेवलप कंट्री है, दे आर वेरी स्मार्ट, they will give the technology and use that technology to extract our resources, and they will carry it back, process it and then send it back to us, है ना, at a higher price। तो वही ड्रेन ऑफ वेल्थ, रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन, स्पेशली लैटिन अमेरिकन कंट्री, जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे यू नो दैट हाउ आईआर में भी पढ़ते हैं या फिर ग्लोबल हिस्ट्री जब पढ़ते हैं उसमें भी पता चलता है। क्रिटिसिज्म क्या है, एक तो है ना रेडिकल पर्सपेक्टिव आया, क्यों कि भाई पूरा एकदम जो वेबरियन ब्यूरोक्रेसी, नॉन इकोलॉजिकल मॉडल आ रहा है, टॉप डाउन ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, इट वाज ए हिस्टोरिकल, दैट मींस वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉम द हिस्ट्री। तो ऑब्वियसली एनी कंट्री शुड डेवलप बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स, बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल कंडीशंस, है ना। इंक्रीमेंटल चेंज होता है, रेडिकल चेंज किया गया। और डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव क्या है, यहाँ क्या देख रहे हैं, नैरो था स्टार्टिंग का जो डेवलपमेंट डायनेमिक्स था। इसी के कॉन्टेक्स्ट में एंटी डेवलपमेंट थेसिस आता है ना। दे विल ब्रिंग हाउ द डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ द वेस्टर्न कंट्री दे वर इम्पोज ऑन द नॉन वेस्टर्न कंट्री। इसमें जैसे वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, तो इसमें देखो कोर पेरिफेरी मतलब पीपुल, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेस आर बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेरिफेरल कंट्री और सेमी पेरिफेरल कंट्री। तो वहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोर पेरिफेरी का कॉन्सेप्ट है या पेरिफेरी सेमी पेरिफेरी। तो सब लोग का एक ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ से, है ना। तो डायनेमिक इंटरेक्शन है, इक्विलिब्रियम की ओर जा रहा है। जैसे मान लो कि इमर्जिंग इकोनॉमी एशियन टाइगर्स है इंक्लूडिंग इंडिया, यहाँ पे क्या है कि हम लोग सेमी पेरिफेरी की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना, मतलब पेरिफेरी की तरफ। और कुछ कंट्री जैसे नॉन वेस्टर्न कंट्री यूगोस्लोवाकिया है जो स्ट्रगल, अफगानिस्तान जैसे कंट्री, वहां डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। तो देवर दे सम कंट्री हैव मूव टुवर्ड्स सेमी पेरिफेरी एंड पेरिफेरी, जहाँ पे डिसइंटीग्रेशन होगा और क्या फर्दर डी डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट फर्दर इंक्रीज हो रहा है। मार्केट फ्रेंडली अप्रोच, एनपीजीए एनपीए, है ना, पीसीए जो हमने पूरा देखा, सेम आइडिया। दैट मींस स्टेट शुड विड्रॉ, स्टेट शुड रोल बैक, देयर शुड बी फ्रेंडली ओपनली एंड रिलक्टेंटली स्टेट शुड इंटरवेन, है ना। तो मार्केट शुड टेक केयर ऑफ डेवलपमेंटल नीड। वर्ल्ड बैंक का स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम,
बाद में इंक्लूसिव न्यू लिबरल अप्रोच आ गया, मल्टी डायमेंशनल अमर्त्य सेन का जो अप्रोच है, कैपेबिलिटी अप्रोच। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना है, डिजिटलाइजेशन हो गया, इंक्लूसिव होना चाहिए, कोलैबोरेटिव अप्रोच, जो हमने देखा कि है ना मॉडल ऑफ डेवलपमेंट तीनों मिलाया, एनपीएम को, गांधीयन को और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को। फिर एंटी डेवलपमेंट थीसिस का कंटेक्स्ट समझ आना चाहिए कि जो मॉडल सजेस्ट किया गया, व्हाट एवर द मॉडल दैट वाज सजेस्टेड बाय वेस्टर्न कंट्री, दे फेल टू ब्रिंग आउट डेवलपमेंट इन द नॉन वेस्टर्न कंट्री। तो दैट वाज द कॉन्टेक्स्ट, है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन है, स्टैंडर्ड पर कैपिटा इनकम, ये सब ज्यादा डेवलप नहीं हुआ, क्वांटिटेटिव अप्रोच था, पीपल सेंट्रिक अप्रोच शुड बी देयर, इकोलॉजिकल अप्रोच शुड बी देयर। दैट्स व्हाई वी सी देयर आर लॉट ऑफ, फॉर एग्जांपल इवन इन द कंटेम्पररी टाइम व्हाट वी आर सीइंग, डेवलपमेंट अभी भी इंक्लूसिव नहीं है, लॉट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल इज देयर, people are not displaced by the developmental process, lack of socio economic transformation is there। तो पीपुल रूटलेस है ना, रूथलेस एंड रूटलेस है ना, प्लानिंग कमीशन में या इसका जो क्रिटिसिज्म होता है, इट वाज रूटलेस डेवलपमेंटल मॉडल, इट वाज रूथलेस। तो ये सब अलग अलग टर्म्स यूज किया जाता है डेवलपमेंटल। रूटलेस मतलब इट वाज नॉट ग्राउंडेड ऑन द इंडियन इकोलॉजिकल सिस्टम, नॉन इकोलॉजिकल मॉडल को रूटलेस बोलते हैं। रूथलेस मतलब दे वर वेरी वेरी रिग्रेसिव, दैट मींस पीपल वर डिस्प्लेस्ड, है ना, देयर वाज नो कंसर्न फॉर पीपल्स कंसर्न, वही रूथलेस बोलते हैं उसको। तो मॉडर्नाइजेशन अप्रोच जो भी देखे, देवर मॉडर्नाइजेशन अप्रोच 70s 80s में देखे, इट वाज मार्जिनल इंक्रीमेंट हुआ पर कैपिटा इनकम में, इनइक्वालिटी इंक्रीज, डेब्ट ट्रैप इंक्रीज, है ना। तो यहाँ पे दे लॉट ऑफ स्कॉलर्स स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग, ओके, फॉर एग्जांपल एशियन टाइगर्स, दे अडॉप्टेड डिफरेंट मॉडल एंड दे वर सक्सेसफुल, इकोलॉजिकल भी था बेस्ड ऑन देयर कंडीशन। ठीक, तो इट इज नॉट, द क्वेश्चन आता है कि इज एंटी डेवलपमेंट एंटी टू द डेवलपमेंट, है ना। तो अब जो वेस्टर्न स्कॉलर्स तो है ना, दे आर वेरी स्मार्ट, अगेन दे विल प्रेजेंट इट एज एंटी डेवलपमेंट थीसिस, है ना। तो उसको ऐसा टर्मिनोलॉजी दे दिया, पीपल में भी कंफ्यूज, बाहर वाले लोग सोचेंगे अच्छा ये तो एंटी डेवलपमेंट की बात कर रहा है, लेकिन ओनली दोज हु आर पवेड स्टूडेंट, दे विल अंडरस्टैंड इट इज नॉट एंटी टू द idea of development, instead they are concerned about the way they it has been defined, है ना। उसका मेजरमेंट है, पैरामीटर है, ऑन दिस पैरामीटर्स दैट इज दे डिसएग्री विद द वेस्टर्न मॉडल, है ना। वेस्टर्न कंट्री का जो सजेस्टेड मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी, कोर पेरिफेरी थ्योरी, तो दे ऑल दोज कंटेंट दे वर दैट मींस टॉप डाउन ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच या वेस्टर्न पर्सपेक्टिव का जो आइडिया था उसके खिलाफ था। तो दे कम अप विद द अल्टरनेटिव मॉडल। अल्टरनेटिव मॉडल क्या है ना, फर्स्ट दे विल रिजेक्ट, व्हाई दे विल रिजेक्ट, बिकॉज देयर इज फर्दर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। तो डिपेंडेंसी थ्योरी ये सब आता है। फिर अल्टरनेटिव मॉडल क्या है, अल्टरनेटिव मॉडल्स क्या क्या है, बेसिक नीड है, कैपेबिलिटी है, स्मॉल ब्यूटीफुल सर्वोदया, और ये सारे तो बेसिकली हम डेवलपमेंट को दो स्कूल ऑफ थॉट में बांटते हैं, है ना। एक हो गया एंटी डेवलपमेंट, दूसरा हो गया पोस्ट डेवलपमेंट मॉडल्स। तो पोस्ट डेवलपमेंट मॉडल क्या बोलेगा कि भाई जो डेफिनेशन है, तो इट शुड बी मल्टी डायमेंशनल कॉम्प्रिहेंसिव, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल, अगेन वेस्टर्न कंट्रीज आर आल्सो इन्वॉल्व, है ना, मल्टी डायमेंशनल है। तो बट द वेस्टर्न मॉडल्स दे क्रिटिसाइज, पोस्ट डेवलपमेंटल मॉडल ने क्या किया कि ना, दीज मॉडल्स वे नॉन इकोलॉजिकल, जो डेवलपमेंटल मॉडल या मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो है ना, बाय द वेस्टर्न कंट्री 1950s and 60s, they were alien to the people, non ecological, people were not able to understand। तो अगेन इट हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ गैप्स। ठीक, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिसइल्यूजन में हो रहा है, एलियनेशन हो रहा है ना। तो अगेन रिसोर्स ड्रेन वाज देयर। तो पोस्ट डेवलपमेंट मॉडल ने हैज क्रिटिसाइज्ड फॉर रिजेक्शनरी अप्रोच, है ना। तो has been criticized because it reject, it is not possible that we Weberian bureaucracy को completely ignore कर सकते हैं, that has also facilitated development, that is the idea। तो post development thesis cannot become alternative। तो ये कहना है ना, रीस्ट्रक्चर कर रहा है डेवलपमेंटल मॉडल को, रीस्ट्रक्चर कर रहा है, दैट इज देयर इज नो कंप्लीट रिजेक्शन। एंटी डेवलपमेंट क्या करेगा, उसको कंप्लीटली रिजेक्ट करेगा। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के नाम पे क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। दिस इज एरोप्लेन मॉडल, कई लोग बोलते हैं हेलीकॉप्टर मॉडल। तो एरोप्लेन क्या होता है, इन द स्काई व्हाट वी सी, एरोप्लेन आर वेरी फार अवे फ्रॉम द ग्राउंड, है ना। तो हेलीकॉप्टर थोड़ा उससे पास आ गया, अगेन इट इज स्टिल इट इज अवे फ्रॉम द पीपल। तो इट शुड बी पीपल लेड डेवलपमेंटल प्रोसेस, इंक्लूसिव जो अप्रोच करते हैं, है ना। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को हम लोग एरोप्लेन मॉडल से भी वेस्ट सेंट्रिक था, एथनोसेंट्रिक था, नॉन इकोलॉजिकल था। तो अल्टरनेटिव मॉडल क्या हुआ, फंडामेंटलिस्ट, कि भाई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप आ गया, जो स्पेशली मिडिल ईस्ट कंट्री में देखते हैं, दे वर वेरी मच क्रिटिकल। तो इट गिव राइज टू द फंडामेंटलिस्ट कि डोंट, वेस्टर्नाइजेशन है ना, डेवलपमेंट इज नॉट, या ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ हो गया, ग्लोबलाइजेशन इज नथिंग बट द वेस्टर्नाइजेशन, दे वर क्रिटिकल, दे वर वेरी रेडिकल इन
देयर अप्रोच। इन्वायरमेंटल रिलेटिवली क्या होगा, इन्वायरमेंटलिस्ट जो है रिलेटिवली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, जैसे चिपको मूवमेंट आ गया। उसके बाद बाकी कैपेबिलिटी अप्रोच, अमरसेन क्या बोलता है फिर, है ना, डेवलप द पीपल्स कैपेबिलिटी, है ना, फ्रीडम को इंक्रीज करो। तो टू मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब बाकी सोशियो इकोनॉमिक यानी दो पार्ट में बांट दिया, एक सोशल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो मॉडर्न जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी था उसमें क्या था, बेसिक नीड अप्रोच आया था और इंटाइटलमेंट अप्रोच आया था इन द अर्लियर फेजेस। तो जैसे है ना, बेसिक नीड क्यों आया था, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम हमने देखा गरीबी हटाओ 20 पॉइंट प्रोग्राम। तो कैपेबिलिटी अप्रोच क्या है, बेसिकली एजुकेशन हेल्थ कैपेबिलिटी पीपुल, यू नो, जैसे नेपोलियन ने भी क्या बोला था, कल जो हम लोग स्टेटमेंट देख रहे थे, ए लीडर इज वन हु डेवलप, यू नो, हु इज ए पीपल्स डेवलपर, है ना, यानी ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस कर रहा है, दी इज क्रिएटिंग लीडर्स। तो सोशल एजुकेशन हेल्थ के बिना तो काम ही नहीं हो सकता है। अगेन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। अगेन केरला मॉडल इज वेरी पॉपुलर इन दिस कॉन्टेक्स्ट, दैट्स व्हाई देयर इज अ डिबेट बिटवीन द केरला मॉडल एंड गुजरात मॉडल, है ना। तो व्हाट वी आर सीइंग, देयर इज लॉट ऑफ फोकस ऑन द डेवलपमेंट, गवर्नमेंट इज, यू नो, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट। तो दीज आर एग्जांपल्स, है ना, कंटेम्पररी एग्जांपल, थ्योरी ऑफ जस्टिस है। इंटाइटलमेंट वर्सेस एम्पावरमेंट अप्रोच, इंटाइटलमेंट जो वेलफेयर एरा के टाइम था, फ्री एजुकेशन, फ्री सब कुछ करना, या वेल स्टेट लेड जो था, कंजम्पशन बेस्ड एम्पावरमेंट था। नाउ वी आर फोकसिंग, अमरसेन क्या बोलता है, बेसिक गिव द बेसिक नीड ऑफ द पीपल, एम्पावर देम, मेक देम कैपेबल। तो पॉवर्टी, है ना, अल्टीमेटली टारगेट वाज बेसिक नीड, इस लोगों का जो बेसिक नीड है ना वो फुलफिल को, अल्टीमेटली पीपल अंडरस्टैंड फॉर रोटी कपड़ा मकान, है ना, उसके आधार पे डेवलपमेंट एजुकेशन हेल्थ दो। तो ट्रिकल स्टार्टिंग मॉडल क्या था, ट्रिकल डाउन थ्योरी था। दैट मींस इफ द पीपल, है ना, टॉप डेवलपमेंट होगा, धीरे धीरे वो ट्रिकल करके ग्राउंड लेवल तक जाएगा। 20 पॉइंट प्रोग्राम है, दीज आर द एग्जांपल्स, है ना, यू कैन, गरीबी हटाओ का है, आईसीडी है। राइट बेस्ड अप्रोच स्पेशली आफ्टर 2005 व्हाट वी आर सीइंग, है ना, पीपल शुड हैव द फ्रीडम, दे शुड हैव द चॉइस, न्यू राइट फिलोसफी भी आधार है। और डेवलपमेंटल मॉडल में क्या होता है, पीपल हैव, यू नो, डिफरेंट नीड्स, जैसे मान लो नरेगा है, अनऑर्गेनाइजेशन आरटीआई है, तो दीज राइट्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। तो इसका निगेटिव क्या होगा, टू मच बल्कनाइजेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस, हर कोई अपना अपना राइट लेके बैठ गया। ठीक, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, एक अगेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आइडिया, क्योंकि अभी जो भी डेवलपमेंटल हो रहा है, क्या हो, क्रोनी कैपिटलिज्म आ रहा है, ऑक्सफॉर्म का जो रिपोर्ट आता है, टू मच इनइक्वालिटी हैज इंक्रीज, पीपल आर नॉट पार्ट ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस। ओके, तो अगेन वी हैव टू मेक द पीपल पार्ट ऑफ, यू नो, डेवलपमेंटल प्रोसेस। सर्वोदया मॉडल जैसे गांधीयन मॉडल है, एवरीवन शुड हैव द राइट इन द, यू नो, दे शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक प्रोसेस। जैसे है ना, एक मॉडल हम लोग बोलते हैं कि प्रोडक्शन बाय मासेस, गांधी जी क्या सोचते थे कि जैसे मान लो चरखा का कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन बाय मासेस का उन्होंने, है ना, थ्योरी दिया। लेकिन मास प्रोडक्शन एक अल्टरनेटिव मॉडल है जो इंडस्ट्री बेस्ड है। जैसे नेहरू क्या बोलते थे कि नेहरू फोकस्ड ऑन मास प्रोडक्शन, प्लांट डेवलपमेंट, ही कम अप विद द, यू नो, इंडस्ट्रियल, यू नो, हैवी इंडस्ट्री और मशीन लाइक मॉडल, मैकेनाइजेशन पे फोकस था। तो देयर वाज डिफरेंस बिटवीन इवन इन द नेहरू और गांधी का जो आइडिया था, गांधी वांटेड देयर इज ह्यूज पॉपुलेशन, सो देयर शुड बी प्रोडक्शन बाय मासेस। ओके, एंड नेहरू थॉट वी शुड फोकस ऑन मास प्रोडक्शन, है ना, उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, हैवी इंडस्ट्री पे फोकस, है ना। तो जब जैसे मान लो भाखरा नंगल को बोला मॉडर्न टेम्पल। तो आर यू एबल टू गेट द डिफरेंस, यू नो, गांधी और नेहरू का जो आइडिया था, गांधी क्या बोलता था, मास इंप्लॉयमेंट क्रिएट करो, है ना, इंडिविजुअलाइज प्रोडक्शन यूनिट होना चाहिए, हाउस होल्ड शुड अगेन बिकम द मास, यू नो, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन बाय मासेस, है ना, एंड मास प्रोडक्शन, अगेन दैट इज द डिफरेंस। तो नेहरू का जब डिबेट होता है देन आल्सो यू गेट सम आइडिया। ठीक, तो इंपावरमेंट गांधी का ग्राम स्वराज है, सेल्फ गवर्नेंस है, नेचर के प्रति, है ना, तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन फोकस है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे फोकस है, हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट ये सब होना चाहिए, सेल्फ रिलायंट अप्रोच होना चाहिए। अब देखो एंटी डेवलपमेंट मॉडल्स में हमने क्या देखा, कुछ रेडिकल था, कुछ, है ना, सर्वोदया मॉडल, बेसिक नीड अप्रोच। तो अलग अलग मॉडल्स आए, अल्टरनेटिव आए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जेंडर फ्रेंडली अप्रोच है। तो अगेन देयर आर सम क्रिटिसिज्म, क्यों इसने रिजेक्ट किया, रिएक्शनरी था, जस्ट लाइक एनपीए, है ना। तो नॉर्थ इज बैड, साउथ इज गुड, अगेन दिस इज, यू नो, वन साइज फिट ऑल टाइप अप्रोच ला रहा है कि नॉर्थ में जो भी सजेस्ट किया दैट इज बैड, दैट इज नॉट जस्टिफाइड। एथनोसेंट्रिक को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं कर सकते, है ना। अल्टरनेटिव मॉडल दिया नहीं, एनपीए की तरह से नो अल्टरनेटिव्स वर प्रोवाइडेड। ठीक है, इसको हेलीकॉप्टर मॉडल बोलता है, क्यों, एरोप्लेन से उतार के कहा हुआ, एरोप्लेन बहुत दूर है आसमान में, है ना, तो हेलीकॉप्टर क्या थोड़ा पास तो आया लेकिन स्टिल इट इज अवे फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, तो रॉबर्ट चैम्बर क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर मॉडल इसको बोलते हैं।
एरोप्लेन है ना, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो 1950 वेस्टर्न कंट्री दिया उसको एरोप्लेन मॉडल बोलते हैं, इसको ना जो बाकी लोग हैं इसको हेलीकॉप्टर। तो बॉटम अप्रोच, अभी कंटेम्प्रेरी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस है, बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए। तो देयर इज रिकंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट, दैट मींस एंटी डेवलपमेंट थीसिस हैज फर्दर इनरिच्ड द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। डू यू एग्री और नॉट, है ना? आर यू ऑल ऑन द सेम पेज? डू यू थिंक एंटी डेवलपमेंट हैज ब्रॉडेन द होराइजन ऑफ द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, है ना? yes sir. एंड देखो कितना डाइवर्सिफाई कर दिया, कितना मल्टी डायमेंशनल कर दिया। अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव क्या होता है, हम थ्योरी में क्या पढ़ते हैं, थ्योरी या थेसिस आता है, देन अगेन देयर इज एंटीथेसिस, देन इट विल लीड टू सिंथेसिस, दैट इज द रिफाइंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो वही हम लोग क्या देख रहे हैं, आइडिया ऑफ डेवलपमेंट हैज बीन फर्दर ब्रॉडेंड। ओके, तो रेलेवेंस क्या होगा एंटी डेवलपमेंट का, टू मच हेटेरोजेनेसी इज देयर स्टिल, दे एक्सपोज द वीकनेस, है ना, ट्रेडिशनल मॉडल की वीकनेस को हाईलाइट कर दिया, एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया। बाद में जाके इसके जैसे मान लो इसको जो अलग अलग टर्म्स है, जॉबलेस क्यों बोलते हैं, आज के डेवलपमेंट को भी हम लोग जॉबलेस बोल रहे हैं। वॉइसलेस मतलब पीपुल डोंट हैव एनी वॉइस, नो पीपल वॉइस वर हर्ड, इट वाज टॉप डाउन ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच। फ्रूटलेस मींस देयर नो फ्रूट, अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव था प्रोस्पेरिटी लाना, वेलफेयर करना, वो भी नहीं हो रहा है। रूथलेस मींस पीपुल डिस्प्लेसमेंट है। फ्यूचरलेस मींस ना जैसे क्लाइमेट चेंज है ना, इन्वायरमेंटल चैलेंज आ गया, तो फ्रूटलेस था। अगेन इट इज मोर प्रॉब्लमेटिक देन प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन। तो कहीं ना कहीं एंटी डेवलपमेंट थेसिस उन सारी चीजों को हाईलाइट किया, व्हाट आर द प्रॉब्लम इन द ट्रेडिशनल डेवलपमेंटल अप्रोच, है ना। ब्लूप्रिंट अप्रोच से किधर चला गया, नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ पीपल सेंट्रिक अप्रोच। इट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटी डेवलपमेंट थेसिस ओनली, नाउ वी आर फोकसिंग ऑन, है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोलैबोरेटिव अप्रोच, पीपीपी, है ना। तो ऑल दीज आर आउटकम ऑफ, जिसको पोस्ट डेवलपमेंट मॉडल्स भी बोलते हैं, है ना, कोलैबोरेटिव मॉडल्स। Then last topic is women in development. Again, this is very important. Women have been subjugated historically for centuries, है ना, everywhere they have been suppressed. So again, there was a lot of debate, है ना। तो in this context also you read the lot of, again essay जो आता है, even UPSC essay में भी direct question आता है, even, है ना, if development is not engendered then it will be endangered. तो वही आज के context में again the participation of 50% of our country's population is very important, है ना। तो उसमें हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट के बारे में डिटेल करते हैं। अगेन दिस सेम कंटेंट यू कैन यूज इन द जीएस, नथिंग टेक्निकल हियर, है ना। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, मॉडल्स, उसके रेलेवेंस और क्रिटिसिज्म देखेंगे, और उसमें क्या क्या अभी कंटेम्प्रेरी टाइम में क्या चल रहा है। तो वुमेन इन डेवलपमेंट जब है ना, तो जेंडर पर्सपेक्टिव व्हाट वी आर सीइंग, पवेड में भी जेंडर पर्सपेक्टिव आना चाहिए। एंड देन इट वाज रियलाइज कि भाई मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंटल मॉडल्स दे वर टू मच रूथलेस, है ना, टॉप डाउन ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच। तो वहां पे पावर डोमिनेशन, इंक्लूसन नहीं था। तो यहाँ पे वे इको फेमिनिज्म की बात है, जैसे ना सुबह में लेके आया, है ना। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, मोस्टली इवन विवेकानंद से, नो बर्ड कैन फ्लाई विदाउट ऑन सिंगल विंग, है ना। कोई भी, है ना, पंछी जो है एक विंग पे फ्लाई नहीं कर सकता, इट नीड बोथ द विंग्स। ओके, तो महात्मा गांधी भी, अगेन ही वाज आल्सो सपोर्टिव ऑफ फर्दर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। अर्लियर मोस्ट ऑफ द सिस्टम दे वर एक्सप्लॉइटेटिव अगेंस्ट द वुमेन, दे सबऑर्डिनेटेड द पोटेंशियल एंड दे वर डिस्क्रिमिनेटेड, है ना। तो अभी आज का जो कॉन्टेक्स्ट है, दे शुड बी गिवन इक्वल राइट, इक्वल चॉइस, दे शुड पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस। तो देयर इज ग्लोबल कंसेंसस अमंग ऑल द इंस्टीट्यूशन आल्सो, वी शुड गो फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, है ना, जेंडर डेवलपमेंट होना जरूरी है। तो देयर इज लॉट ऑफ इंडिसेस हैज बीन पब्लिश, है ना, ग्लोबल जेंडर गैप है। या डीपीएसपी में भी हम लोग देखते हैं, है ना, डेडिकेटेड मिनिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड, जेंडर बजटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया 2005 में इंडिया में। प्रेजेंट स्टेटस वही है कि एक तो करेंट डाटा अपने को पता होना चाहिए, all these data keep on changing, we should be aware of these some facts so that you can validate your points, है ना। कई बार कमेंट्स आता है, need to substantiate और need to validate your point with the relevant facts, data, reports, तो you should be able to remember the current data, है ना। ये हो गया। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप का आप देखते हैं, जेंडर एंड डेवलपमेंट के बाद वही ऐसा सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या रोल रहा वुमेन को डेवलप करने में, है ना, हाउ वुमेन बिकम द लीडर इन द पार्टिसिपेंट इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस। तो दिस इज अगेन ए पोस्ट डेवलपमेंटल मॉडल, है ना। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बॉटम अप अप्रोच, अल्टरनेटिव डेवलपमेंटल मॉडल इमर्ज हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप के फॉर्म में। तो जेंडर गैप कम करना, उसके बाद हम पॉवर्टी ऑटोमेटिकली ना इंक्लूजन होगा और जेंडर जस्टिस को प्रमोट करेंगे। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे मान लो ग्रामीण बैंक है, तो बैंक लिंकेज प्रोग्राम चला था। सेल्फ हेल्प मूवमेंट क्या है, बेसिकली इट इज अ ग्रुप ऑफ वुमेन, दे कम टुगेदर ऑफ, दे आर हैविंग द सिमिलर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, दे अर्न समथिंग बेस्ड ऑन, दे क्रिएट ए सेविंग अकाउंट, है ना, उसमें कुछ पैसा कलेक्टिवली जमा करता है, बेस्ड ऑन दैट दे वर्क कैरी आउट सर्टेन एक्टिविटी, दे गेट द लोन फ्रॉम द बैंक।
तो मीनिंग वही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब होमोजेनस ग्रुप ऑफ 10 to 20 पीपल, है ना, दीज पीपल विल कम टुगेदर, कैरी आउट द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, दे आर वॉलेंट्री, है ना। तो कुछ कुछ टर्म्स है ना, यू शुड बी एबल टू रिमेम्बर देम। तो दीज आर द फीचर्स, वॉलेंट्री होना चाहिए, होमोजेनस होना चाहिए। एवोल्यूशन में इसमें भी अलग अलग फेजेज है ना। तो पहले क्या, जब आजादी के टाइम जो है ना शराब की दुकानें थी, लिकर शॉप, देवर पिकेट, उसमें प्रोटेस्ट चल रहा था वुमेन का। फिर बाद में 1950s में हम लोग क्या देख रहे हैं, लिज्जत पापड़, है ना, लिज्जत पापड़ हैड बीन वेरी पॉपुलर, वेरी सक्सेसफुल मॉडल। फिर ग्रामीण बैंक आया, उसने क्या पैसा देना शुरू किया। तो 1987 का जो है ना, मद्रास मैसूर में, वहां पे भी है ना लिंकेजेस प्रोग्राम था, डेवलपमेंट एजेंसी आया। नाबार्ड ने फिर लिंकेज करना शुरू कर दिया, बिगेस्ट वर्क इन द वर्क। इसमें वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सभी, वर्ल्ड बैंक ने भी इसको अप्रिसिएट किया है ना। ग्रामीण स्वराज रोजगार है, रूरल डेवलपमेंट लाइवलीहुड मिशन है। तो करेंट गवर्नमेंट भी क्या कर रहा है, ई गति शक्ति गवर्नमेंट, ई मार्केट प्लेस पे MSME या सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट को मार्केटाइज कर रहा है। केरला के अंदर कदम श्री वेरी पॉपुलर, सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। तो ऑल दीज आर एग्जांपल्स, वेरियस एग्जांपल दैट यू शुड बी एबल टू रिकॉल। ऑब्जेक्टिव वही है कि इंजेंडर करना है डेवलपमेंट को, अदरवाइज डेवलपमेंट विल बी इंडेंजर्ड, है ना। दो टर्म होता है, इंजेंडरिंग ऑफ डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर नहीं तो क्या होगा, इंडेंजर हो जाएगा, है ना। इंडेंजर मतलब डेवलपमेंट विल बी लॉपसाइडेड। तो वॉलेंट्री है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी हो रहा है, सोशल कैपिटल भी बिल्ड हो रहा है लोगों में, ग्रुप। सोशल कैपिटल मतलब ट्रस्ट जो होता है सोसाइटी में, नेटवर्किंग होता है ना। तो मॉडल्स में क्या देख रहे हैं, वॉलेंट्री इकोनॉमिक कॉपरेशन है, इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी ये सब भी सपोर्ट किया जा रहा है। नबार्ड ने 1972 में लाया, इसमें ट्रेनिंग भी दे रहा है, माइक्रो एंटरप्राइज को प्रमोट किया जा रहा है, फेडरेशन क्रिएट किए जा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग स्कीम है, फॉर्मेशन ऑफ में भी हेल्प करता है, ट्रेनिंग देता है, उसको मार्केटिंग में हेल्प करता है। तो अल्टीमेटली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, दे आर आल्सो कंटेम्पररी टाइम प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ लोन्स टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल, है ना। तो सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस कुछ एग्जांपल है ना, कदम श्री सेवा, दे वेरी पॉपुलर, नबार्ड लिंकेज प्रोग्राम। तो दे हैव बीन, दे आर इमर्जिंग एज ए न्यू अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ द डेवलपमेंट इन द कंटेम्पररी टाइम। ठीक है, तो वो हमको हाउ इट हेल्प्स इन द एम्पावरमेंट में क्यों हेल्प कर रहा है, जैसे वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया, एजुकेशन अवेयरनेस, है ना, स्किल डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा है वुमेन का। तो सोशियो इकोनॉमिक, वुमेन आर इमर्जिंग एज ए सोशल फोर्स, इकोनॉमिक फोर्स, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में नाउ वी आर सीइंग, इवन इन द विलेज, ग्राम सभा और पंचायत में क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के रोल को इम्पोर्टेंट बढ़ाया जा रहा है। ठीक है? जैसे मान लो लोकल केरला के अंदर क्या है, 66% मेंबर्स आर, मेंबर्स, कदम से भी मेंबर्स आर पार्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। वीकनेस क्या होगा कि भाई पेट्रियार्कल सोसाइटी अभी भी है, देयर आर लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, कांस्टेंट्स आर देयर, ऑलमोस्ट दे आर नॉट एबल टू सक्सेस रेशियो इज आल्सो 50%। कई लोग है ना, कई दे नीड लॉट ऑफ हैंड होल्डिंग, है ना, लॉट ऑफ फैसिलिटी, गवर्नमेंट शुड बिकम ए फैसिलिटेटर, इनेबलर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलपमेंट। तो ओवर अंडर रेगुलेटेड है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज विथ रिगार्ड टू क्वालिटी, स्किल्स, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स। तो देर आर लॉट ऑफ इश्यूज, पैसा वैसा मिलना, है ना, देर आर लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिटेबिलिटी इज आल्सो लैकिंग। देन कुछ स्टैटिस्टिक यूपी का है, या रिपोर्ट आया उसके बारे में लिखा हुआ है। मार्केटिंग चैलेंज, जैसे प्रोडक्ट बना लिया लेकिन उसको बाहर मार्केटिंग कैसे करें। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में क्या देख रहे हैं, क्या है ना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा हो जाता है, अगेन दैट इज द मलगम कमिटी, यू कैन रिकमेंड, राइट द रिकमेंडेशन कि भाई उसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, जैसे है ना 26% तक चला जा रहा है, दैट इज प्रॉब्लमेटिक। एंड ब्यूरोक्रेसी इज आल्सो नॉन कोऑपरेटिव, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, है ना। तो अगेन दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक। ठीक, उसके बाद हम लोग रेलेवेंस क्या देख रहे हैं, इससे है ना इंजेंडरिंग हो रहा है, इंक्लूजन हो रहा है ना, पॉवर्टी कम हो रहा है, कैपेबिलिटी बढ़ रहा है। तो इट इज नॉट ए न्यू अल्टरनेटिव, है ना। तो नाउ नॉट ओनली टू गवर्नमेंट बट आल्सो इट इज आल्सो ब्रिंगिंग ऑल द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। तो रियल सेंस में सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ डेवलपमेंट या गवर्नेंस बाय नेटवर्क का बहुत बढ़िया एग्जांपल हो सकता है। टेक्नोलॉजी है ना, नाउ वी आर ई शक्ति है, पीएम गवर्नमेंट ई मार्केट, करंट गवर्नमेंट इज अगेन लॉट ऑफ emphasis on the development of self help group. Andhra Pradesh model very successful in terms of empowering self help group. तो what are the steps, problem we have seen, है ना, steps by the government. तो what more steps are needed, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम होना चाहिए, नेशनल लेवल पे पॉलिसी फ्रेमवर्क लेके आओ, मार्केटिंग सपोर्ट देना चाहिए, नॉर्दर्न, है ना, स्पेशली इन द साउदर्न स्टेट दे आर वेरी सक्सेसफुल, बट दे हैव फेल्ड इन द नॉर्दर्न स्टेट। एंड दे शुड, लोकल गवर्नमेंट में क्या होना, पार्टिसिपेशन बढ़ा दो, लिंकेज कर दो MSME को सेल्फ हेल्प ग्रुप से। ठीक, तो वर्ल्ड बैंक है ना, दे हैव आल्सो अप्रिशिएटेड द एफर्ट ऑफ कंटेम्पररी गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ एम्पावरिंग द वुमेन। अब ये नॉर्थ साउथ डिवाइड क्या होता है नॉर्मली, है ना, दैट वी हैव सीन, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, दे विल आल्सो लुक इनटू द
contemporary, they will come up with the reports. तो you can look for some of the reports, contemporary reports, कि जैसे मान लो सेल्फ हेल्प ग्रुप का अलग अलग स्टेट क्या इनिशिएटिव लिया। मध्य प्रदेश में तेजस्विनी है, बिहार में जीविका है, उड़ीसा में तृप्ति है, और गुजरात के अंदर मिशन मंगल। तो देयर आर डिफरेंट नोमेनक्लेचर फॉर द सेम आइडिया, है ना। तो मेनी ऑफ देम हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बन गया, अब उसने कुछ प्रोडक्ट बनाया, दे विल बी एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट इन द नियर बाय एरिया, एक्सटेंडेड एरिया में भी फैल गया। नाउ देयर इज अ नीड फॉर फर्दर कनेक्टिंग टू द ग्लोबल मार्केट, है ना। तो आउटवर्ड अगर लिंकेज नहीं होगा तो दे विल बिकम स्टेगनेंट। तो सेम एमएसएमई के साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है ना। दे आर एबल टू कैप्चर लोकल मार्केट्स, बट once it comes the local global market, they are not able to capture it। तो ये इसको अब ये जो लिंकेज है ना, ये गैप को फिल करना है ना। उसके लिए क्या चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट चाहिए, है ना, लोन चाहिए। तो देयर आर लॉट ऑफ सपोर्ट दैट इज नीडेड फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना। तो दे एब्जॉर्ब लोकल आइडिया, लोकल सप्लाई तो कर रहा है, लेकिन 2 डिकेड के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, नाउ देयर इज ई कॉमर्स, है ना। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इज अनदर वन एफर्ट कि भाई लोकली जो प्रोड्यूस आइटम है उसको बढ़ाया जाए। प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्यों ग्लोबल मार्केट में नहीं जा रहा है, क्वालिटी का इशू है ना, लॉजिस्टिक नहीं, इनएडिक्वेट लॉजिस्टिक है, प्रोफेशनल स्किल्स नहीं है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है। तो दे आर बेस्ड ऑन नैरो जो टेक्निकल। अब यहाँ पे टेलर जैसा साइंटिस्ट या थिंकर कोई आ जाए, ब्रिंग आउट सम रेडिकल चेंज, है ना, क्या क्या चेंजेस की जरूरत है। गवर्नमेंट शुड कम अप दिस, these problems should be sorted out at the earliest, so that these small groups are able to participate in the global market। चाइना यही किया, जैकमा का जो है स्टोरी, तो अगेन दैट इज ऑल्सो रिलेटेड, वहां के एमएसएमई क्यों इतना सक्सेसफुल हुआ, दैट इज ए केस स्टडी ऑफ द करंट कंटेम्पररी टाइम। तो लॉजिस्टिक सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, ई कॉमर्स सपोर्ट, जैसे ई गवर्नमेंट, ई मार्केट प्लेस, सिंगल विंडो क्लियरेंस, है ना। तो लोन वोन मिलना जरूरी है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट फॉर द सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल, इट इज ए टर्म दैट वाज गिवन बाय रॉबर्ट पुटनम in 1990s। okay, that is the it is the amount of participative potential, civil orientation और ट्रस्ट। तो क्या होगा, जिस सोसाइटी में जितना अधिक लोगों के बीच में ट्रस्ट है, लेस कॉन्फ्लिक्ट है, कॉपरेशन ज्यादा है, तो क्या होगा, दैट फैसिलिटेट द म्यूचुअल डेवलपमेंट, म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है। तो सोशल कैपिटल क्या है, इफ यू हैव गुड सोशल कैपिटल, देयर इज लॉट ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द सिटीजन एंड गवर्नमेंट, पीपल आर एबल टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट प्रोसेस। तो ट्रस्ट वर्दीनेस, जनरल क्या बोलते हैं, ट्रस्ट वर्दीनेस। नेटवर्क है ना, सोशल नेटवर्क जितने होते हैं, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, दे ऑल कम अंडर सोशल कैपिटल, है ना। दे आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज। तो नवाड का जैसे लिंकेज प्रोग्राम हो गया, है ना, दीनदयाल उपाध्याय का हो गया। तो अभी करेंट टाइम में 2.0 यानी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। सेल्फ हेल्प ग्रुप अब तक क्या था, इनफॉर्मल था, कोई इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट नहीं था। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन क्रिएशन ऑफ डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन, है ना। पॉलिसी बनना चाहिए, फ्रेमवर्क होना चाहिए, क्रेडिट फैसिलिटी, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग होना चाहिए, जैसे ई गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसमें क्या होता है, एक वेबसाइट बना दिया, जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है अपने प्रोडक्ट वहां पे मार्केटाइज कर सकता है, पब्लिश कर सकता है। ई हार्ट का कॉन्सेप्ट लेके आ गया। तो मार्केटिंग सपोर्ट जो फॉरवर्ड लिंकेज है ना, उसका है। और एक है कि वुमेन इन डेवलपमेंट में क्या होता है, 3 फेज आता है। एक वुमेन इन डेवलपमेंट, दैट मींस दिस वाज फर्स्ट फेमिनिस्ट मूवमेंट। इसमें क्या होगा, 1960 70 में क्या है कि दे शुड बी आल्सो मेड पार्टिसिपेंट ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस। तो वुमेन का रोल क्या होना चाहिए डेवलपमेंट में, उसके बारे में डिबेट हुआ। दे शुड आल्सो गेट सम राइट, दे शुड पार्टिसिपेट, है ना। तो लिमिटेड वे में कैसे वुमेन डेवलपमेंटल में पार्टिसिपेट कर पाए। फिर आता है वुमेन इन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इट वाज डिपेंडेंसी थ्योरी, वही जैसे वेस्टर्न नॉन वेस्टर्न कंट्री का जो हमने देखा। तो यहाँ पे क्या कैपिटलिस्ट आइडिया था कि भाई एक्सप्लॉइट वुमेन एज ए लेबर, है ना। फेमिनिस्ट मूवमेंट चला, एक्सप्लॉइटेटिव जो कैपिटलिस्ट क्लास का जो वर्कर है, इट वाज लाइक ए लेफ्ट मूवमेंट, लेफ्ट विंग मूवमेंट। तो इट हाईलाइटेड द हाउ ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वाज एक्सप्लॉइटेटिव, है ना। तो वो कैपिटलिस्ट आइडिया, पेट्रियार्कल सोसाइटी, उसके खिलाफ आवाज उठाया। फाइनली द कंसेप्ट ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट के, यानी जेंडर क्या है, एक सोशली कंस्ट्रक्टेड कंसेप्ट है ना। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, फीमेल आर आल्सो एक्सेलिंग इन ऑल द डोमेन्स। तो दैट मींस दैट दिस इज अ मेंटल सोशली कंस्ट्रक्टेड कंसेप्ट, है ना। इसमें फोकस क्या है कि भाई दे आर वेरी रेडिकल, है ना। ये जो डिफरेंसेस है, इट इज है ना, मेस्कुलिनिटी और पेट्रियार्कल जो सोसाइटी बन गया। तो रूट कॉज ऑफ डिटर्म, है ना, जो डिस्क्रिमिनेशन है, दैट इज द आइडिया ऑफ जेंडर। तो वो प्रॉब्लम है। जेंडर एंड डेवलपमेंट का फोकस क्या है कि जो भी रूट कॉज है डिस्क्रिमिनेशन का, दैट शुड बी डिसमेंटल्ड। इसलिए क्या इनिशिएटिव लिया गया, जेंडर बजटिंग है, जेंडर, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी प्रोग्राम। तो डिसमेंटल करना है, जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है उसको खत्म करना है। ओके, तो दैट्स व्हाई जेंडर एंड डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जो इंडिसेस है ना, जेंडर डेवलपमेंट से रिलेटेड इंडिसेस हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, है ना, यू शुड बी अवेयर ऑफ दोज रिपोर्ट्स।
Okay, so I think we can conclude for a Sir, development administration. Anything to ask? yes Yeah, sir. anything to ask? सर ये तीनों में डिफरेंस क्या है सर? हाँ, देखो पहला तीनों में ना, अगर हम देखा जाए कि जेंडर, देखो तीन फेज में बोलते हैं। पहले वुमेन इन डेवलपमेंट, यानी चलो ठीक है, वुमेन को भी डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करने दो, है ना। तो डेवलपमेंट बहुत ही पैसिव, women were very passive in their approach, पैसिव तरीके से डेवलपमेंट का पार्टिसिपेंट, बेनिफिशियरी ऑफ, women should be beneficiary passive recipient of developmental process, इसलिए women के लिए कई सारे इनिशिएटिव प्रोग्राम चला। फिर women in development मतलब कि दे शुड आल्सो गेट अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट, है ना। लेकिन जब जेंडर एंड डेवलपमेंट आया, इसमें वुमेन लेड डेवलपमेंट की भी बात हो रही है। दे हैव कंप्लीट फ्रीडम ऑटोनॉमी जस्ट लाइक द मेल मेंबर्स, है ना। तो देयर इज फर्दर इंक्रीज इन द फ्रीडम, है ना। तो डेवलपमेंट यहाँ पे क्या होगा, जेंडर न्यूट्रल डेवलपमेंट की बात करता है। women are equally capable of develop, they are able to lead the developmental process। यहाँ पे क्या, पेसिव रेसिपेंट, यहाँ पे एक्टिव रेसिपेंट हो गया। यहाँ पे अगेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल। ओके, बेसिक आइडिया ये है, ठीक है। रेडिकल इन अप्रोच जेंडर एंड डेवलपमेंट, इसने पूरा जेंडर का जो है ना, बेसिकली इट इज अ सोशली कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, है ना। दे आर इक्वली कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट द डेवलपमेंटल प्रोसेस। तो इट इज मोर रेडिकल इन अप्रोच, दैट इज द आइडिया, ठीक है। या आर यू एबल टू गेट इट? Yes, yes sir. ठीक है, एनी अदर डाउट? No sir. Yeah, okay, we'll take 2 minutes break and then we'll begin with the model question answer. Okay, yeah, thank you। 9:24 पे शुरू करते हैं।
Okay, am I audible? Yeah, can anyone just confirm? Yes, sir. Okay. So basically in this है ना मॉडल आंसर में हम लोग क्या देखे कि अगेन द कॉन्सेप्ट विल बी सेम, इट विल बी रिपीटेड, ओनली मेन फोकस शुड बी ऑन हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट, है ना। दो है ना, जैसे मान लो अलग अलग थिंकर ने ओपिनियन दिया, पर्सपेक्टिव दिया, है ना। तो बट नथिंग टू वरी अबाउट द न्यू टर्मिनोलॉजी या न्यू थिंकर्स का अगर कोई स्टेटमेंट आ जाता है, ओनली थिंग इज द बेसिक आइडिया विल बी द सेम, है ना। तो जैसे ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, द मेजर ऑफ लीडर इज नॉट द नंबर ऑफ पीपल हु सर्व देम। मोनार्की में क्या होता है, इफ यू लुक एट एनी मोनार्क, व्हाट विल हैपन, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, है ना। मुगल के टाइम, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था, तो दे वर लॉट ऑफ पीपल वर सर्विंग देम, they were the bureaucratic system, administrative system was such that lot of people were there, है ना। तो दे वर कंसर्न ऑन द मीन्स, टू मच फोकस ऑन द मीन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अधिक से अधिक लोग है ना होना चाहिए। तो मेजर ऑफ लीडर इज नॉट द नंबर ऑफ पीपल हु सर्व देम, बट द नंबर ऑफ पीपल दे सर्व। यानी लीडर मतलब क्या होता है, जितने अधिक, जैसे गांधी ने क्या किया, करोड़, है ना, कितना आदमी को सर्व किया। देन द लीडर लाइक पटेल, नेहरू, गांधी, ऑल दीज लीडर्स दे वर एबल टू सर्व द मासेस। तो दैट इज द बेसिक आइडिया, है ना। तो लीडरशिप, इसमें कुछ भी क्वेश्चन आए, बेसिक्स आपको लिखने ही पड़ेंगे, है ना। एवरी क्वेश्चन यू मस्ट राइट द बेसिक्स ऑफ लीडरशिप, है ना। हाउ इट इज लीडरशिप अबाउट द सर्विस ऑफ पीपल। जैसे नेपोलियन क्या बोला, लीडर इज वन हु डेवलप इन हु इज ए पीपल्स डेवलपर, दैट मीन्स हु इज टेकिंग केयर ऑफ नीड्स ऑफ पीपल, हु आर मैक्सिमाइजिंग द नीड्स ऑफ डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ पीपल। तो हमने अलग अलग बेसिक्स में क्या देखे, लीडरशिप का जो एबिलिटी क्या होता है, हमने आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस, एक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस भी बोलते हैं, है ना। अल्टीमेटली यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द गोल। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप, ट्रांजैक्शनल है, करिश्मेटिक एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। इन द कंटेम्पररी टाइम में ये चल रहा है ना, करिश्मेटिक एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। ट्रांजैक्शनल जो मैनेजरियल टाइप होता है, दैट इज द ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। तो you can bring out any of the model that was proposed in the leadership theory। तो जो ट्रेडिशनल थ्योरी क्या था, पोजीशन के बेस पे था, सब मैनेजर सबऑर्डिनेट का रिलेशन होगा। ट्रांजैक्शनल इन्फ्लुएंस की बात जो एर्गारिस, है ना, ये लिकर कौन करता है, मैकग्रेगर करता है, ठीक। तो सबऑर्डिनेट दे सर्व द लीडर, दैट इज द मेन आइडिया। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा, लीडर होगा, कई सारे सबऑर्डिनेट होंगे, दे विल सर्व द लीडर, दैट वाज द ट्रेडिशनल आइडिया। लेकिन आजकल क्या है, हु सर्व्स द पीपल, दैट मीन्स जैसे मान लो गांधी जी, रतन टाटा, दे आर सर्विंग द, दे आर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ओके, सो दे आर पर्सन बेस्ड, करिश्मेटिक टाइप का ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को दे आर सर्विंग द मासेस, दैट इज द आइडिया, आइडिया एक्सप्लेनिंग द आइडिया। सो लीडरशिप इज अबाउट सर्विंग पीपल रेदर बीइंग सर्व, उसी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इसमें है ना, इसमें कुछ सिंपल एलोबरेट कमेंट करना है कि दैट मीन्स पीपल नीड टू जो लोगों का जो नीड है, उसके नीड को सर्व करना, दैट इज द लीडरशिप क्वालिटी, ठीक। तो हम लोग एक जेनरिक कंक्लूजन में क्या है, लीडरशिप कैसे इवॉल्व किया, है ना, ट्रेड से, बिहेवियरल से ट्रांसफॉर्मेशनल की ओर गए, ठीक है। तो ट्रेडिशनल से हम लोग कैसे, ट्रेडिशनल आइडिया वर्सेस कंटेम्पररी मॉडर्न आइडिया, दैट वी हैव सीन। अब अगला है, देयर इज नो डाउट दैट डिपार्टमेंटलाइज। सर, या अगर ये वाले क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना रहे अगर अपन को हेडिंग्स में, तो सर ये ब्रेक डाउन नहीं हो रहा था, मतलब समझ नहीं अच्छा, आ हाँ रहा था। हाँ, ठीक। इसमें क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज मेजर ऑफ ए लीडर, दिस इज द मेन क्रक्स। हाउ डू यू मेजर द क्वालिटीज ऑफ लीडर, हु इज अ लीडर, हाउ वन बिकम लीडर, व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडर। एक तो बेसिक आइडिया ये हो गया मेजर करने का। इसमें दो तरीका है, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच, है ना। तो द इंडिसेस मतलब जो ट्रेडिशनल तरीका था उसमें यही था आइडिया, नंबर ऑफ पीपल, जितने हायरार्की होगा, पार्किंसंस लॉ, ये सब क्या, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, टॉप डाउन, रिजिड, है ना, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, ठीक है। और मॉडर्न आइडिया क्या है, ट्रांसफॉर्म, करिश्मेटिक लीडर है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है। तो दिस इज द मेन आइडिया, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रेडिशनल लीडरशिप स्टाइल और मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन लीडरशिप स्टाइल। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्विंग द मासेस, है ना, सर्विंग मासेस। हियर व्हाट वाज ऑब्जेक्टिव, लीडर्स, सर्विंग द लीडर्स, लीडर विल कमांड, लीडर विल डू एवरीथिंग, ओके। तो ओके दिस सर। इज, हाँ, दी ब्रॉडर स्ट्रक्चर ये है, उसी में डिफरेंशिएट करके उसी को एनालाइज करना है, डिफरेंशिएट भी करना है और कुछ एग्जांपल दे देना, ठीक है। आर यू एबल टू गेट इट?
Yes, sir. Okay, okay. There is next question. There is no doubt that departmentalization है ना, 4P जो गुली कार्विक ने दिया, तो डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या है? गवर्नमेंट में क्या डिवीजन ऑफ वर्क है, स्पेशलाइजेशन है. इट इज फ्रॉट विद द कॉम्प्लेक्सिटी. इतना आसान तो नहीं है, इसलिए क्या होगा, इतने डिपार्टमेंट के बीच में क्या हो रहा है, देयर इज lot of overlapping, lack of coordination, lack of synchronization. इसलिए पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव लाना पड़ गया, ताकि मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. 16 मिनिस्ट्री को एक साथ क्लब किया गया, जितने भी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड होगा. फिर उसी तरह तुम्हारा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होता था, इंपावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर आया. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इंपावर ग्रुप में क्या अंतर है? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है. इंपावर में क्या किया, कैबिनेट मिनिस्टर को भी इंक्लूड कर दिया, ताकि डिसीजन मेकिंग आसानी हो जाए. तो अगेन दैट इज बिकॉज ऑफ lot of complexity that is fraught with the departmentalization करना इतना आसान नहीं है ना. तो दे आर पार्ट टेक्निकल एंड पार्ट इन पॉलिटिकल. पॉलिटिकल क्यों? तो कोलिशन एरा में क्या देख रहे हैं, पार्टी सपोर्ट करेगा, मिनिस्ट्री चाहिए. कोलिशन एरा में क्या देख रहे हैं, देयर इज प्रोलिफेरेशन ऑफ नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ड्यू टू द पॉलिटिकल कंपल्सन. तो दैट इज पार्ट पॉलिटिकल. पार्ट टेक्निकल जो गुलिक एंड आर्बिक का आइडिया है, ओके, उसी को डिस्कस करना है. how you have to explain the statement very clear term. तो जैसे बेसिक्स अपन लिखेंगे, गुली कार्विक का आइडिया 4P के बारे में लिख दिए है ना, 4P का बता दिए, उसके कैसे टेक्निकल और कैसे पॉलिटिकल है ना. तो टेक्निकल तो हम जो गुली का नर्विक आइडिया उससे रिलेट कर देंगे. पॉलिटिकल फैक्टर जैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कोलिशन गवर्नमेंट है ना, उसके आधार पे. तो आजकल क्या है, चेंजेस है इसमें. हम लोग वी हैव हाउ मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, स्टेट कैसे जो मतलब जैसे मान लो कि कई सारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट क्रिएट होता है, दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन कोलिशन एरा. लेकिन सिंगल पार्टी जब पार्टी पावर में आता है 2014 के बाद, क्या देख रहे हैं, अगेन देयर इज री इंटीग्रेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट. पीएम गति शक्ति, ऑल दीज आर फॉर्म ऑफ री इंटीग्रेशन. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बना दिया. So there is lot of a political aspect that is involved. Politics decide the number of departments. That is what is the idea. Part technical मतलब based on the people, person, place वाला जो गुली का निकाला है, उसके हिसाब से. टेक्निकल मतलब जैसे इसरो जैसे डिपार्टमेंट हो गया, तो पर्पस प्रोसेस इसके आधार पे बन रहा है, टेक्निकल हो गया. दूसरा पार्ट क्या, पॉलिटिकल. पॉलिटिकल मतलब बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, बेस्ड ऑन पॉलिटिकल फैक्टर्स है ना, उसके आधार पे ये दोनों को एक्सप्लेन करके है. तो ये यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, अपार्ट फ्रॉम 4Ps that was given by गुलिक एंड आर्बिक, इट इज द पॉलिटिक्स. 5th P है ना, 5th P क्या होता है, पॉलिटिक्स होता है. दैट इज अगेन वेरी डोमिनेंट फैक्टर है ना, इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग द डिपार्टमेंट्स. एंड आज के कॉन्टेक्स्ट में रेगुलेटरी आ गया, कोऑर्डिनेशन की कमी है, तो वो हमको होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, ये सब पोस्ट एनपीएम मॉडल से रिलेट करना है. ठीक है, तो देयर इज नो डाउट डिपार्टमेंटलाइजेशन इज फ्रॉट विद कॉम्प्लेक्सिटी. वी ऑल एग्री, यस ऑफ कोर्स देयर इज लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है ना. व्हाई? दे आर पार्ट टेक्निकल, टेक्निकल इन नेचर भी है, कुछ पॉलिटिकल नेचर, उसी को डिस्कस करना विद सम एग्जांपल. ठीक, यू कैन कीप ऑन आस्किंग इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, कीप ऑन आस्किंग इन बिटवीन आल्सो, नो इशू. ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, पीपीपी शुड नॉट बी सीन एज ए इंस्ट्रूमेंट टू सॉल्व द पब्लिक सेक्टर बजट constraints or financing gap, but rather as a tool to deliver effective, cost efficient project and associated service. अब मान लो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट आ जाए, तो हम इसमें क्या देखना है कि पीपीपी है ना, बेसिक्स आपको लिखना पड़ेगा है ना. पीपीपी का इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस हमने पढ़ लिया है ना, सिग्निफिकेंस आना चाहिए. व्हाई इट इज एफिशिएंट मेथड ऑफ डिलीवरिंग. सर क्योंकि आप इसमें भी पार्ट्स बता सकते हैं क्या, क्योंकि सर इसमें एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजों के बारे में बात की गई है. हाँ, तो देखो इसमें मेन पार्ट क्या है ना, पहले तो ये समझना है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि पीपीपी, एक तो हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया, इसका पीपीपी हो गया. इट इज नॉट ए इंस्ट्रूमेंट टू सॉल्व द बजट, जो फाइनेंशियल गैप है. भाई सिर्फ स्टेट के पास पैसा नहीं है, सिर्फ हम पीपीपी सिर्फ उसको इसलिए तो नहीं ला रहे कि सिर्फ स्टेट को पैसा नहीं है इसलिए हम प्राइवेट सेक्टर को ला रहे. इज इट सो? है ना, इट इज नॉट सो. दैट इज फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट इज इट इज ए टूल टू डिलीवर एंड कॉस्ट इफेक्टिव प्रोजेक्ट. देखो अलग अलग टर्म दिया है, नथिंग टू वरी अबाउट द टर्म्स. तो दो पार्ट हो गया, मेनली क्या है, दो पार्ट है. पहला पार्ट है नोट सीन एज इंस्ट्रूमेंट टू, है ना, गैप हुआ, पैसे कमी हो गई तो इसलिए नहीं ला रहे. दूसरा अल्टीमेटली पर्पस इज टू सर्व द सिटीजन, टू डिलीवर द प्रोजेक्ट इन ए कॉस्ट इफेक्टिव मैनर. ठीक है, ये मेन आइडिया है. आर यू एबल टू गेट इट? टू पार्ट्स है, पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट डिलीवर करना है. ठीक है, तो अब उसको एक्सप्लेन करना है हाउ इट डिलीवर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट प्रोजेक्ट. ठीक है, लेकिन कमेंट कर रहा है, यानी कमेंट मतलब यू हैव सम लिमिटेशन भी हाईलाइट करना है पीपी के, है ना, इसके जो चैलेंजेस है, लिमिटेशन और सजेस्ट करना है. ओके, तो आर यू एबल टू गेट द पार्ट्स, है ना, दो पार्ट हो गए, इसको एक्सप्लेन करके फिर उसके चैलेंजेस, हाँ, सजेशन.
ओके, तो पीपीपी है ना, डोमिनेट मॉडल ऑफ डिलीवरी सर्विस है, स्पेशली है ना एनपीएम के दौर में। पार्टनरशिप तो इंपॉर्टेंट हो गया, बेसिक्स लिख दिए। इंडिया कॉन्टेक्स्ट में इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट पीपीपी सेक्टर। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बेसिक्स यू हैव टू राइट, है ना। अलग अलग टाइप्स हो गए, मॉडल्स हो गए, उसके बारे में लिखा गया है। और सक्सेस के बारे में, कुछ सक्सेस होगा कुछ फेलियर होगा, है ना। कुछ लिमिटेशंस उसको हाईलाइट करके हम कुछ सजेशंस, जो केलकर कमेटी है उसके रिकमेंडेशंस को लिख दिया, है ना। और फ्यूचर से लिंक कर दिया, वी नीड बेटर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फैसिलिटेट करना पड़ेगा, ठीक। तो भाई बेसिक कंटेंट विल रिमेन द सेम व्हाट एवर यू आर रीडिंग इन द नोट्स, ओनली प्रेजेंटेशन और क्वेश्चन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पवन सर डायरेक्ट बोलते हैं, राइट व्हाट एवर यू नो अबाउट द पीपीपी, है ना। नथिंग टू वरी अबाउट द क्वेश्चन स्टेटमेंट, दे आर अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटिंग द पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसमें बस एक बेसिक पर्सपेक्टिव है, कंटेंट वही आने वाला है कि पीपीपी का एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है और सजेशन क्या है, बस। अगला है द नेचर एंड रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन इंडिकेट कम्युनिकेशन इज अथॉरिटी। अगेन चेस्टर बर्नार्ड का जो बेसिक आइडिया है, हाउ कम्युनिकेशन इज अथॉरिटी, व्हाई कम्युनिकेशन इज अथॉरिटी, है ना। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर मान लो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक मतलब एक सिंगल स्टेटमेंट है कि नेचर ऑफ कम्युनिकेशन फॉर्मल है इनफॉर्मल है, और कम्युनिकेशन का रोल क्या है। तो बेसिक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ना, 7 स्टेज हमने देखा है ना, वीवर का मॉडल जो है उसको मेंशन कर दिए, बेसिक्स वहां लिख दिए। तो एक्सप्लेन करना है और अथॉरिटी से लिंक करना है, ठीक है। और लेकिन बाद में जो कमेंट है, अगेन यू हैव टू बियॉन्ड गो बियॉन्ड द स्टेटमेंट। कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली अबाउट अथॉरिटी, इट इज मच ब्रॉडर, सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करना, मोटिवेशन करना, लीडरशिप, है ना। उसके अलावा भी और भी कई फैक्टर्स होते हैं। तो कम्युनिकेशन इज फंडामेंटल, हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो दीज आर स्टेटमेंट, है ना, यू शुड रिमेंबर सम ऑफ द, ऐड देम इन द नोट्स, है ना। पिपनर का स्टेटमेंट है, इट इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। मिलेट ने क्या बोला, ब्लड स्ट्रीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। या एक और स्टेटमेंट होता है, कम्युनिकेशन इज द लाइफ एंड ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो देर आर मल्टीपल स्टेटमेंट्स, यू कैन मेंशन दैट। फिर बेसिक्स हमने कम्युनिकेशन का लिख दिया। फिर नेचर ऑफ कम्युनिकेशन है, जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो कम्युनिकेशन टॉप डाउन है, ब्यूरोक्रेटिक है। बर्नार्ड का जो आइडिया है बेसिक्स, यू हैव टू मेंशन दैट, हाउ कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। सबऑर्डिनेट समझ ही नहीं पाया तो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी का बात है। हाउ अथॉरिटेटिव एस्पेक्ट, मतलब हाउ कम्युनिकेशन इज एक्टिंग लाइक ए अथॉरिटी। जैसे पीएमओ से कम्युनिकेशन आ गया, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, सेंटर स्टेट कम्युनिकेशन। तो बाद में एक जो लिमिटेशन, हाउएवर कम्युनिकेशन इज नॉट मेयरली अथॉरिटी, एक्सचेंज ऑफ आइडिया भी है। इन्फॉर्मेशन तो हो ही रहा है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, अंडरस्टैंडिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो पर्पसेस क्या है, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग है, डिसिमेशन ऑफ मोटिवेशन है, लीडरशिप स्टाइल है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन व्हाट वी आर सीइंग, कम्युनिकेशन इज अथॉरिटी। लेकिन आज का जो कॉन्टेक्स्ट है, दैट इज मच मोर, इट हैज मच ब्रॉडर एप्लीकेशन। सोशल कैपिटल बिल्ड करने में भी कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस है। यू कैन कनेक्ट विद द कंटेम्पररी इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। आईसीटी को भी मेंशन कर सकते हैं, डिजिटल एरा गवर्नेंस में भी कम्युनिकेशन का रोल ला सकते हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है, मोरल कैन डिराइव एन ऑर्गेनाइजेशन फॉरवर्ड और कैन लीड टू एम्प्लॉइज डिसकंटेंट, है ना, पुअर जॉब परफॉर्मेंस और absenteeism। अब मोरल क्या है, मोरल और मोटिवेशन का डिफरेंस हमने समझ गया। तो बेसिक्स क्या है मोरल का, आपका ग्रुप फिनोमेना, है ना, साइकोलॉजिकल फिनोमेना कैसे है। एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी का हमने चार्ट टेबल बना के देखा था, है ना। हाई प्रोडक्टिविटी, लो मोरल, लो हाई मोरल, हाई प्रोडक्टिविटी। तो वो टेबल का बेसिक आइडिया यहाँ पे आना चाहिए। तो मोरल, है ना, एग्जामिन करना है, टू व्हाट एक्सटेंट मोरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्प्लॉयज मोटिवेशन, हाउ इट इम्प्रूव द यू नो इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, वो पार्ट, है ना, उसको समझाना है। तो इंपॉर्टेंट वेरिएबल हो गया डायनेमिक्स को समझने के लिए, मोरल का बेसिक्स लिख दिए, कैरेक्टरिस्टिक लिख दिए, है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अगर मोरल नहीं है, तो मोरल अगर है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या है। तो दो दैट यू हैव टू मेंशन। तो अब लेकिन ये जो डायग्राम है ना, ये अगेन दैट इज नोट्स में भी सर ने लिखा है, वेरी यूजफुल। अगेन इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ओनली थिंग इज यू कैन कोट सम एग्जांपल, ठीक है। तो इस तरह से अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि मोरल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन यू कैन जस्ट फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग हाउ मोरल कैन बी इम्प्रूव्ड, ठीक है। फिर अगला, सिस्टम थ्योरी इन एसेंस इज नॉट ए थ्योरी। अब सिस्टम थ्योरी क्या है, जेनरिक डिस्क्रिप्टिव अप्रोच था, है ना, डिस्क्राइब कर रहा है। सिस्टम अप्रोच क्या था, है ना, हम लोग क्या देख रहे, पूरे सिस्टम ये जो है, इनपुट आउटपुट, एक जेनरिक मॉडल दे दिया। कोई भी सिस्टम आता है उसके अंदर ये सारा काम होगा, सुप्रा गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सिस्टम थ्योरी इन एसेंस नॉट ए थ्योरी, है ना, एक अप्रोच है एडमिनिस्ट्रेटिव फिनोमिना को समझने के लिए। चाहे सिस्टम सब सिस्टम की बात हमने किया, है ना, हेरल फेडी का स्टेटमेंट है। तो वही एक वाई, पहले से बेसिक्स लिखना है एंड देन एक्सप्लेन हाउ इट इज एन अप्रोच रेदर देन ए थ्योरी, ठीक।
तो लेकिन हमको कंक्लूड उसको काउंटर भी स्टेटमेंट में थोड़ा काउंटर भी कर सकते हैं, नो इट हैज सम थ्योरेटिकल एलिमेंट, है ना। तो हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड, या बेसिक्स क्या है ना, सिस्टम थ्योरी, उसके कंटेंट को लिख दिए। व्हाई सिस्टम थ्योरी इज नॉट ए थ्योरी, उस पहले उस पॉइंट को दिखाना है। अब जैसे ये जितने भी थ्योरीज हैं, दीज आर नो सेवरल थ्योरीज that in that approach what we are seeing, system theory is basically represent a broader approach where multiple ways through which administrative phenomena were analyzed. These are the examples, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि देयर कैन बी सेवरल, है ना, सिस्टम थ्योरी, तो ब्रॉडर अप्रोच को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिमिलैरिटी क्या है, सब सिस्टम, होलिज्म, सिनर्जिज्म, जो हमने इक्विफाइनलिटी याद है ना, दीज आर द टर्म्स दैट वी हैव डिस्कस। तो वो कैरेक्टरिस्टिक है, दीज आर द सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंट है, बंच ऑफ थ्योरी होगा जिसमें जितने भी थ्योरीज हैं दे हैव सम कॉमनैलिटी, सम सिमिलैरिटी, तो यही सिमिलैरिटी है। सिस्टम सब सिस्टम इंटरेक्ट करेगा, होलिज्म का कॉन्सेप्ट है, सिनर्जी होना चाहिए, इक्वल फाइनलिटी वाला बात हमने डिस्कस किया। तो लेकिन लास्ट में क्या है, नॉर्मेटिव सेंस में हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम थ्योरी इज ए नॉर्मेटिव इन थ्योरी इन द नॉर्मेटिव सेंस, है ना। तो नॉर्मेटिव सेंस में क्या होता है, थ्योरी और अप्रोच में कोई डिफरेंस नहीं होता है ना। बस ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है ब्लैक एंड मॉर्टन का, लीडरशिप स्टाइल 2 डायमेंशन है, या तो पीपल कंसर्न होगा या टास्क मास्टर जॉब ओरिएंटेड होगा, है ना। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द मैनेजरियल ग्रिड, एक्सप्लेन विथ रीजन व्हिच वन इज बेस्ट। तो एकदम डायरेक्ट ये पूरा थिंकर बेस्ड हो गया, थ्योरी बेस्ड हो गया। तो एक दो एग्जांपल आ चुका है, तो बेसिक्स आपको लिखने हैं, उसके बाद स्टेटमेंट को सिंपल एक्सप्लेन करना है कि भाई जो थ्योरी था, बेसिक्स आपने कई सारे थ्योरी डेवलप हुआ, लेकिन ब्लैक एंड मॉर्टन का जो मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी हाउ इट इज डिफरेंट, है ना, कंसर्न फॉर पीपल, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, उसके हिसाब से, है ना, अपन ये देख चुके हैं कल डिटेल, है ना। तो उसका क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या फीचर, सिंपल एक्सप्लेनेशन, है ना। व्हाई इट इज मोर इफेक्टिव, फाइनली जो टीम लीडर वाला होता है, व्हाई इट इज कंसर्न फॉर बोथ पीपल आल्सो एंड प्रोडक्शन आल्सो, उसी को एलोबरेट करना है, एरगैरिस से लिंक कर दिया, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट थिंकर से नीति आयोग का करंट एग्जांपल हो गया, ठीक। again the content and process theory of motivation hypothesis, two different approaches to human motivation. तो content theory what of motivation, process how people are motivated, है ना। तो वेक्टर ब्रूम का एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, प्रोसेस थ्योरी में कैसे हाउ what are the process in through which people are motivated. कंटेंट मतलब मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड, हर्जबर्ग का हाइजीन एंड मोटिवेशन फैक्टर, यू जस्ट नीड टू एलोबरेट, है ना। तो इसमें नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल, यू हैव टू ब्रिंग आउट द सेम कंटेंट व्हाट यू हैव इन द क्लास नोट्स, है ना। बेसिक आइडिया लिख दिया मोटिवेशन का, और दोनों थ्योरी के बारे में हमने बात किया, कंटेंट थ्योरी क्या है, प्रोसेस थ्योरी क्या है, दोनों का सिमिलैरिटी डिफरेंस हमने ऑलरेडी देखा है ना। तो लास्ट में वही कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में क्या है, दोनों का ऑब्जेक्टिव तो सेम है, मोटिवेशन क्रिएट करना, दोनों बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। वो है मेन कंक्लूजन। फिर अगला है पीपीपी हैव अंडरगोन ए मेजर शिफ्ट इन द रिसेंट ईयर, यस ऑफ कोर्स इट हैज अंडर। तो पीपीपी का इवोल्यूशन हमने देखा ना, हाउ पीपीपी, देयर इज नाउ री रेगुलेशन, या उसमें सोशल ऑडिट, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, केलकर कमेटी का रिकमेंडेशन, है ना। नीति आयोग आने के बाद, नीति आयोग के पहले और नीति आयोग के बाद में क्या चेंजेस हुआ, अगेन 2000 प्लानिंग कमीशन के टाइम क्या था और नीति आयोग के टाइम में क्या है, तो दोज आर द थिंग्स दैट यू कैन ब्रिंग आउट, है ना। तो मेजर शिफ्ट क्या हुआ 2014 के बाद, देयर इज एन इंडिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंट्रिंसिक वीकनेस, है ना, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ पीपीपी मॉडल। इन दिस कॉन्टेक्स्ट हाउ पीपल फर्स्ट पीपीपी फॉर एसडीजी अप्रोच कैंडिडेट्स, यानी पीपल को भी इन्वॉल्व करने की जरूरत है, ये कितना क्यों इट इज रिक्वायर्ड, है ना, व्हाई इट इज नीडेड, तो दैट यू हैव टू ब्रिंग आउट, है ना। पीपीपी का बेसिक कंटेंट, व्हाट इज कोलैबोरेशन, ये वो, है ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक लिख दिए। तो आजकल जो है हाइब्रिड मॉडल क्या चल रहा है कि लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, है ना। कुछ सक्सेसफुल मॉडल हाईलाइट कर दिए, है ना, वीकनेसेस को हाईलाइट कर दिए, व्हाट आर द वीकनेस ऑफ, है ना। तो रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है, तो कुछ इतना डिटेल लिखने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट ब्रिंग आउट 1-2 एग्जांपल, और क्या क्या लिमिटेशन है ट्रेडिशनल पीपीपी अप्रोच में, और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो सर ने तो पूरा एकदम मॉडल आंसर में इसमें हम ना कहा कि पूरा डिटेल में कंटेंट, क्योंकि कंटेंट डायनेमिक होता है, तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, तो नथिंग टू वरी कि कुछ Sir, एग्जांपल please या explain people first PPPs for SDG approach. हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, उसको अचीव करने के लिए क्या है, सिर्फ पीपीपी से काम नहीं होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से काम नहीं होगा, बल्कि पीपल शुड बी लीडिंग देम, पीपल शुड बी पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। पीपल फर्स्ट मतलब अल्टीमेटली इट इज द पीपल दैट आर इम्पोर्टेंट, लोगों के लिए काम होना सबसे इंपॉर्टेंट है। एसडीजी का ऑब्जेक्टिव ही लोगों का वेलफेयर प्रोस्पेरिटी लाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। पीपल फर्स्ट मतलब जैसे अभी क्या नेशन फर्स्ट का कॉन्सेप्ट आता है ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, नेशन फर्स्ट, तो पीपल फर्स्ट एक नया कॉन्सेप्ट ले गया, मतलब पीपल सेंट्रिक, आर यू एबल टू गेट इट। Yes, sir.
पीपल सेंट्रिक पीपीपी मॉडल, दैट शुड बी अप्रोच, है ना। उससे रिस्क और जो ऑडिटिंग का सोशल ऑडिट ये सब लेके आओ, इंस्टीट्यूशनल है, रेगुलेशन है, तो वो एस्पेक्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। फिर अगला है कि कंटीजेंसी व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट अनसर्टेनिटी। कंटीजेंसी व्यू मतलब जो डायनेमिक एस्पेक्ट होता है, जो सिचुएशनल फैक्टर है, दैट प्रोजेक्ट अनसर्टेनिटी अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन एज मैनेजमेंट स्टाइल डिपेंड्स ऑन सिचुएशनल वेरिएबल्स। इसको सिंपल डिस्कस करना है, मतलब कंटीजेंसी थ्योरी क्या एक्सप्लेन करेंगे, और उसमें जो यूनिवर्सलिटी है उसमें भी कुछ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सलिटी है, इफ एंड देन वाला जो कॉन्सेप्ट हमने देखा था, उसको एलोबरेट करना, डिस्कस करना, थोड़ा लिमिटेशन भी हाईलाइट कर सकते हैं कि हाउ इट हैज बिकम प्रॉब्लमेटिक, उसका लिमिटेशन क्या था। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में अपन देख लिया कि थ्योरेटिकल प्रीमाइस क्या था, है ना। कंटीजेंसी थ्योरी का सिस्टम थ्योरी के बाद कंटीजेंसी थ्योरी आया, एक्सटेंशन था, कॉन्स्टेंट्स क्या क्या फेस, भाई ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी, जो 3 स्टडी हमने देखा, है ना, जॉन वुडवार्ड का देखा, लॉरेंस एंड लॉस का देखा। तो अगेन स्टेबल इन्वायरमेंट और कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट, सिंपल टेक्नोलॉजी, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, है ना। तो उसको आपको हाईलाइट करना है, ब्रिंग आउट दो स्टडीज, है ना, फिडलर, जॉन वुडवार्ड, तो एक दो स्टडी लिख दिए, बेसिक्स यहाँ से आ जाएगा। हाउ थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, नो टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, एवरीथिंग इज चेंजिंग नाउ वी, है ना। जैसे इफ देयर इज अनसर्टेनिटी कंटीजेंट फैक्टर स्टिल, है ना, वन, इसका जो लिमिटेशन था, कंटीजेंसी का थोड़ा लिमिटेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हेल्प इन ये अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, क्वेश्चन ही कौन नहीं सा? समझ आ रहा है, क्या पूछ रहा है। हाँ, इसमें ना, तो हाँ। कंटीजेंसी व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को व्यू करने का अलग अलग मॉडल अप्रोच देख लिया हमने, है ना। सिस्टम के बाद क्या आया, कंटीजेंसी व्यू आया। तो कंटीजेंसी व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज वन पार्ट, प्रोजेक्ट्स अनसर्टेनिटी अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। क्योंकि कंटीजेंसी क्या बोलता है, इफ ऐसा सिचुएशन है तो देन यू अडॉप्ट दिस मॉडल, आर यू एबल टू गेट इट। तो देयर आर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी दैट हैज बीन प्रपोज्ड बाय अ कंटीजेंसी थ्योरी। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट सिस्टम किस पे डिपेंडेंट है, सिचुएशनल वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट। ओके क्वेश्चन, ओके। हाँ समझ गए। तो हाँ। कंटीजेंसी व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट अनसर्टेनिटी, वाइट प्रोजेक्ट अनसर्टेनिटी, बिकॉज बिकॉज इट ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन कैसा डिजाइन करता है, जो सिचुएशनल वेरिएबल पे डिपेंडेंट हो, तो दैट इज ब्रिंगिंग लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। वाइट इज ब्रिंगिंग अनसर्टेनिटी, व्हाट आर द लिमिटेशंस, है ना, उस पे बात हो रही है। ओके, आर यू एबल टू गेट इट? यस सर, थैंक यू सर। देखो, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, है ना, टू फैक्टर हाइजीन मोटिवेशन, और वो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइज, बट इट इज क्रिटिसाइज फॉर सेल्फ एट्रीब्यूशन एरर, है ना। तो कई लोग है ना, अच्छा खुशी है तो बोलेगा नहीं एक्सटेंसिव फैक्टर है ना, बहुत अच्छा चल रहा है, मैनेजमेंट आर वेरी गुड इफ यू आर हैप्पी, लेकिन इफ यू आर वेरी हैविंग द बैड मूड, प्लेजेंट एक्सपीरियंस, यू विल ब्लेम एवरी, यू नो, ब्लेम ऑन द, है ना, एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट। तो वही है जो क्रिटिसिज्म हम लोग हाइजीन, ये जो हर्जबर्ग का थ्योरी है ना, टू फैक्टर थ्योरी, बस उसी का पॉजिटिव्स एंड निगेटिव्स, यानी जो फीचर्स लिख दिए, अंडरस्टैंडिंग कैसे हेल्प कर रहा है, और उसके क्रिटिसिज्म, द क्वेश्चन इज डायरेक्टली ऑन दैट। ओके, तो स्टेटमेंट वही कर रहा है, पहला पार्ट में आपको, है ना, रेलेवेंस बताना है हर्जबर्ग के थ्योरी का, और दूसरे पार्ट में उसको क्रिटिसाइज करना है। ठीक है ना? तो टू फैक्टर थ्योरी लिख दिए, उसके लिमिटेशंस को हाईलाइट दिए, जब सिचुएशन है ना, पीपल आर हैप्पी, मोटिवेटेड, तो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर ये सब बोल देता है। ठीक है, एरर ऑफ सेल्फ एट्रिब्यूशन क्यों है, कि भाई जब लोगों को इंटरव्यू किया गया, पॉजिटिव मूड था तो बोला बहुत बढ़िया चल रहा है ना, इंट्रिंसिक फैक्टर के कारण हम मोटिवेटेड हो रहे हैं। जब व्हेन देन दे वर नॉट इन द हैप्पी मूड, दे ब्लेम द एनवायरनमेंट, दे ब्लेम द मैनेजमेंट, तो वो एक, है ना, एरर आता है इसमें। तो वही क्रिटिसिज्म है, अदर क्रिटिसिज्म को भी हाईलाइट करना है। ठीक है, मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन लैक्स एम्पिरिकल एविडेंस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म ऑफ मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, based on, you know, though it is very generic in nature, it can be applied in any setting, but it lack empirical finding, self actualization मतलब क्या, वेरी सब्जेक्टिविटी। तो वही लिखना है, मैस्लो हायरार्की ऑफ थ्योरी जो हमने पढ़ा, उसमें उसको बेसिक्स लिखना है ना, बेसिक्स के बाद उसको क्रिटिसाइज करना है, लेकिन रेलेवेंस बताना है। इन कंक्लूजन व्हाट यू हैव टू शो, डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, डिस्पाइट इट लैकिंग एम्पिरिकल वैलिडिटी, इट हैज लॉट ऑफ रेलेवेंस। क्यों बोलते हैं सर, ऐसा? यस यस, या प्लीज। सर ये जो सेल्फ एट्रिशन एरर है, हाँ हाँ हाँ। ये क्रिटिसिज्म कैसे है सर इसका? हाँ, जैसे क्या लिंक होता है ना, कैसे? ये तो, हाँ, इसमें क्या बोला गया कि भाई लोग जो है इंटरनल फैक्टर्स मोटिवेट हो रहा है या एक्सटर्नल फैक्टर्स मोटिवेट हो रहा है। तो व्हेन ह्यूमन इज इन ए पॉजिटिव मोड, वो क्या एट्रीब्यूट करेगा, आई एम हैप्पी बिकॉज इंट्रिंसिक फैक्टर, मतलब जो मोटिवेशनल फैक्टर है ना,
मोटिवेशनल फैक्टर हमने देखा, दैट इज इंट्रिंसिक फैक्टर, कि रिगार्ड दो, सेल्फ रिस्पेक्ट दो, तो पीपल व्हाट पॉजिटिव मोड होगा तो क्या बोलेगा, वी आर सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। हाउएवर व्हेन पीपल आर नॉट हैप्पी, तो उसको कहेगा कि भाई फेलियर का कारण क्या है, एक्सटर्नल मैनेजमेंट बेकार है, ये तो गाली गलौज करता है, ये इंसल्ट करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो दे विल ब्लेम ऑन द मैनेजमेंट। Are you able to, this is the crux, you can understand the whole idea of error यहाँ से। Are you able to get it? सर ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है ये हाइजीन फैक्टर है। हाँ, हाइजीन फैक्टर है और इंट्रिंसिक फैक्टर मोटिवेशनल फैक्टर है, उसी को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। दिस इज मोटिवेशनल फैक्टर और है ना। आर यू एबल टू गेट इट? है, समझ आ रहा है सबको? चलो ओके। अगला है करिश्मेटिक एंड ट्रांसफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ लीडरशिप। तो देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना, पहला 2 चैप्टर के अलावा जितने भी क्वेश्चंस है ना, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो कॉम्प्लिकेशन इधर। तो अभी इसमें सिंपल बता दिया, दोनों थ्योरी है ना सिनोनिमस बोला जाता है, लेकिन कुछ डिफरेंस है सिग्निफिकेंट, उसको एग्जामिन करना है ना। तो सिंपल एक्सप्लेन करो सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस को, तो दे आर डिफरेंट बट दे आल्सो हैव द सिमिलैरिटी, दिस इज एनालिसिस। तो इसमें है ना जो सिंपल नोट्स का कंटेंट है, इसमें अगर चाहो तो कुछ एग्जांपल ऐड कर सकते हो, अदर नथिंग टू वरी, जस्ट ब्रिंग आउट व्हाटएवर इज रिटन इन द नोट्स, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, तो दोनों को एक्सप्लेन कर दिए, दोनों का कंपोनेंट बता दिए, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस को हाईलाइट कर दिया, और दोनों को कॉमनैलिटी से कंक्लूड कर दिया। ठीक, तो रेगुलेटरी गवर्नेंस आज का एरा क्या है, नो इट इज, हाँ यस एनीथिंग ओके। तो रेगुलेटरी गवर्नेंस इज नॉट द सेम एज नेटवर्क गवर्नेंस। अब देखो ऑब्वियसली इट इज नॉट सेम एज नेटवर्क गवर्नेंस। गवर्नेंस बाय नेटवर्क का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, पोस्ट एनपीएम में होता है ना। या रेगुलेटरी गवर्नेंस क्या होता है, गवर्नमेंट या इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी एजेंसीज, आर दे सेम? तो ऑब्वियसली ऑन द फेस ऑफ इट आल्सो इट इज अपेयरिंग देयर आर डिफरेंसेस। बेसिक्स लिखने रेगुलेटरी और गवर्नेंस का डिफरेंस को एक्सप्लेन करना है। तो लेकिन इसमें ओवरऑल क्या हो रहा है, अल्टीमेटली जो कंक्लूजन है, इट इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क गवर्नेंस, क्योंकि हमने क्या देखा रेगुलेटरी गवर्नेंस में सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेटर्स भी बनाया गया, तो वहां पे भी तो नेटवर्किंग है, कई सारे सेक्टर्स हैं, उसके लिए रेगुलेटर बन गया, उसमें भी नेटवर्किंग हो रहा है। फेडरल लेवल पे भी देख रहे हैं, स्टेट लेवल पे रेगुलेटर है ना, नेशनल लेवल पे है और ग्लोबल लेवल पे है। तो रेगुलेटरी गवर्नेंस में इट इज अ सबसेट ऑफ नेटवर्क गवर्नेंस, दैट इज क्रिटिक स्पार्क, और है ना, तो सिमिलैरिटी डिफरेंस दिखाते हुए फिर हम उसको रिलेट भी करेंगे। ठीक है, सिमिलैरिटी भी दिखाना है। ठीक है, मेंस मोटिव इन डिफरेंट सब पार्ट्स, है ना, मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, देयर आर मल्टीपल यूनिट्स एंड सब यूनिट, पीपल हैव डिफरेंट मोटिवेशंस। डाउट है इन जनरल सर, जो यूनिट 3 के क्वेश्चंस आते हैं वो काफी थोड़े जेनरिक दिखते हैं। हाँ मतलब हाँ जैसे वो लीडरशिप वाला फर्स्ट क्वेश्चन था और ये मैन मोटिव्स वाला, ये तो मतलब मैस्लो पे डायरेक्ट है। बट हाँ यूजुअली मैंने थोड़ा नोटिस किया है कि तो इनको अपन ब्रेक डाउन कैसे कर सकते हैं और थिंकर से मतलब ऐसे कैसे लिंक कर सकते हैं, ऐसे कुछ अगर पैटर्न है ब्रेक डाउन करने का अच्छा। तो सर। देखो इसमें ना अप्रोच ये होना चाहिए, पहले तो स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है ना। एक तो ये हमारा मेन बॉडी में आएगा। सबसे पहले देखो, आप कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार मोटिवेशन है ना, तो ऑलवेज बिगिन विद द सम जेनेरिक स्टेटमेंट ऑन मोटिवेशन, राइट सम बेसिक्स ऑफ मोटिवेशन। अगर लीडरशिप है तो लीडरशिप का बेसिक्स लिख दिए, एंड देन इट इज टॉकिंग ऑफ सब पार्ट्स ऑफ सेम ऑर्गेनाइजेशन। तो अब जो इससे रिलेटेड कौन थिंकर है, ब्रिंग आउट दैट थिंकर, है ना। उससे फिर उसके बाद होगा कि हम उसको रिलेट करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल ले लिए, है ना, या जो पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उसका एग्जाम्पल ले लिए। ठीक, तो उससे रिलेट करना है। जो अप्रोचेज है ना, एक तो फेजेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्टेट, उससे लिंक कर सकते हैं, ओके या सर। ठीक है ना, उसको लिंक देखो देखो मैक्रो एंड माइक्रो दोनों चीज क्लियर होना चाहिए, माइक्रो कैसे है, मैक्रो कैसे है। अगर वो एस्पेक्ट को अपन डिस्कस कर दिया ना, तो दैट विल बी एनफ। ठीक है, ओके सर। हाँ ठीक। ए मेजर प्रॉब्लम विद द कंपैरेटिव पब्लिक, है ना, इज दैट इट हैज बीन बिहेवियरल देखो ये डायरेक्ट क्रिटिसिज्म है ना, तो नथिंग न्यू। बिहेवियरल क्यों, एम्पिरिकल डिस्क्रिप्टिव, तो वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड सॉल्यूशन। एकेडमिक हो गया, यूनिवर्सल मॉडल नहीं ले पाया, तो वही क्रिटिसिज्म है कि बिहेवियरलिज्म क्या है, एम्पिरिसिज्म टेक्निक है ना, पॉजिटिविज्म लाया। ये प्रॉब्लम कैसे बन गया, क्योंकि इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एनालाइज करना वेरी डिफिकल्ट, एंड यू कैन नॉट हैव वन सिंगल मॉडल फॉर देम। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, दैट मींस बियॉन्ड दिस बिहेवियरल आल्सो देयर वर अदर प्रॉब्लम्स। ये एक क्वेश्चन में कई बार मिसिंग होता है, जब भी आंसर इवेलुएट किया हमने,
तो देखेगी अदर प्रॉब्लम को हाईलाइट नहीं करता है, तो दैट यू शुड ब्रिंग आउट। सिंपल सीपीए का कंटेंट एज इट इज आएगा, और बियॉन्ड बिहेवियरल व्हाट आर अदर प्रॉब्लम्स दैट यू हैव टू हाईलाइट। ठीक है, फिर एक्सप्लेन फेरेल हेडिस 3 स्टेज, है ना। नवदीप यू आर आस्किंग दिस। तो 3 स्टेज मॉडल जो डेवलपमेंट का है उसका रेलेवेंस, तो 3 स्टेज में यही है। एक तो पहला इंस्टीट्यूशनल अप्रोच था, दूसरा क्या स्ट्रक्चरल फंक्शन, और लास्ट में क्या समझ में आया कि भाई वी शुड हैव द मिडिल लेंथ सीरीज, जो कंप्लीटली यूनिवर्सल भी नहीं है और कंप्लीटली वेस्ट सेंट्रिक भी नहीं है। देयर शुड बी, है ना, कल जो हमने देखा मिडिल लेंथ थ्योरी का, या ना कि कंप्लीटली वेस्ट सेंट्रिक है, नो यूनिवर्सल थ्योरी है, मिडिल में कुछ प्रॉब्लम ओरिएंटेड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, तो वो मिडिल लेंथ फाइनल स्टेज यही चल रहा है। यही 3 स्टेज उसने रेशनलाइज किया। ओके, you have to, you can bring this, add this content in your model and in your notes also. They have not, notes में इसको कवर नहीं किया, सर ने टेस्ट में कंक्लूड कर दिया था। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल है ना, वही है, ब्यूरोक्रेसी बेस्ड हो गया, तो है ना कंपैरेटिव लिमिटेड टू द इंस्टीट्यूशंस के बारे में स्टडी किया जाए कि ब्यूरोक्रेसी कैसे कम करो, वेवेरियन ब्यूरोक्रेसी का हो गया। स्ट्रक्चरल फंक्शन जो टैलकुट पर्सन का हमने देखा, एक स्ट्रक्चर एक फंक्शन, पॉलीफंक्शनलिज्म, ओवरलैपिंग, रैपिड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, उसके बारे में लिखना है। मिडिल रेंज थ्योरी मतलब जो ग्लोबलाइजेशन के दौर में क्या देगा कि बेस्ट सुप्रा नेशनल सब नेशनल लेवल पे भी हो रहा है ना। तो हाउ टू बिकम, कंपैरेटिव स्टडी, इसका पर्पस होना चाहिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड, है ना। तो ऐसा यूनिवर्सल थ्योरी लाने की कोई जरूरत नहीं। दैट इज द 3 मॉडल गिवन बाय हेडी। उसके इट इज द नेचर ऑफ प्रोसेस ऑफ चेंज व्हिच डिटरमाइंस डिफ्रैक्टेड और प्रिज्मेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी सोसाइटी। सिंपल एलोबरेट करना है, तो यानी प्रोसेस ऑफ चेंज को, है ना, व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रोसेस ऑफ चेंज, what kind of changes are taking place in the society, that will determine whether it is a refracted society or it is a prismatic society, उसी के बारे में बताना है ना। तो बेसिक्स वही है, बेसिक्स मतलब रिक्स का जो प्रिज्मेटिक साला मॉडल था उसको एक्सप्लेन करना है ना। तो रिक्स का मतलब, डेवलपमेंट का मतलब क्या था, चेंज का मतलब क्या था, उसको एलेबरेट किया है। 2 टाइप ऑफ, है ना, चेंजेस क्या क्या है, कि भाई एक तो एक्सोजेनस चेंजेस और दूसरा इंडोजेनस चेंजेस है। तो अल्टीमेट नेचर ऑफ चेंज क्या होता है भाई, या तो सोसाइटी अंदर विद इन, है ना, इंडोजेनस तरीके से चेंज हो रहा है, या एक्सटर्नली इम्पोज है। तो देयर आर फीचर्स, है ना, एक्सोजेनस है क्या होगा, इंडोजेनस है क्या है, उसको आप ब्रीफली मेंशन करना है। दिस इज द मेन आइडिया, हाउ द प्रोसेस ऑफ चेंज, व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रोसेस ऑफ चेंज, वेदर इट इज इंटरनल और एक्सटर्नल, इंडोजेनस और एक्सोजेनस। ठीक है, दैट विल डिटरमाइन द कि जो सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक प्रिज्मेटिक है या डिफ्रैक्टेड है ना। तो बस रिक्स का बेसिक आइडिया, लिंक इट विद द टाइप ऑफ चेंज, सिंपल एलोबरेशन। ठीक है, जेंडर पर्सपेक्टिव इन डेवलपमेंटल प्रोसेस हैज बिकम इंट्रिंसिक टू एनी डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई भी डेवलपमेंट की बात करेंगे तो जेंडर पर्सपेक्टिव इज कंपल्सरी, इट इज मस्ट। विदाउट डेवलपमेंट, विदाउट जेंडर पर्सपेक्टिव, इट इज ए वेरी नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। ओके, दैट इज द मेन आइडिया। ठीक है, उसी को लिखना है, जेंडर पर्सपेक्टिव, जो विवेकानंद से लेकर अलग अलग थिंकर ने ओपिनियन दिया। ठीक है, उसके बाद चैलेंजेस भी लिखाएंगे, स्टिल देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। ठीक है, वुमेन इन डेवलपमेंट, ये जो 3 फेजेस है उसके बारे में लिखना है। अब उसके बाद स्टिल दिस डेवलपमेंट हैज नॉट ब्रॉट द डिजायर्ड आउटकम, स्टिल देयर आर लॉट ऑफ इनइक्वालिटी, लिमिटेशंस भी हाईलाइट कर देंगे। लेकिन ओवरऑल क्या है, ओवरऑल अपने को क्या है ना, बॉटम कॉम्प्रिहेंसिव एंड मोर इंक्लूसिव अप्रोच होना चाहिए। दैट इज द वे फॉरवर्ड टाइप कंक्लूजन। The failure of development administration as a distinctive field of PubEd is lies in its conceptualization. अब क्या को डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, सीपीए के पैरेलल डेवलप हुआ, तो देयर इज ए फेलियर। फेलियर क्यों, इसका जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन था ना वही प्रॉब्लमेटिक था, उसी के बारे में लिखना है। द फेलियर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिस्टिंक्टिव फील्ड ऑफ पबेड, है ना, पबेड में एज ए सब फील्ड इमर्ज हो। तो इसका जो कंसेप्चुअलाइजेशन था डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, या डेवलपमेंट थेसिस का, बाद में एंटी डेवलपमेंट थेसिस जो आया, वो कंसेप्चुअलाइजेशन में ही प्रॉब्लम था। आर यू एबल टू गेट इट, द फेलियर, द मेन रीजन वाज इन द कंसेप्चुअलाइजेशन वाली। तो बेसिक्स लिखना है, प्रॉब्लम क्या था कंसेप्चुअलाइजेशन में, और लेकिन डिस्पाइट क्रिटिसिज्म हमको हाईलाइट करना है सिग्निफिकेंस को। तो डेवलपमेंट एज इंस्ट्रूमेंट ये है, और उसके बाद हम प्रोसेस को बता देंगे स्टार्टिंग। अब ये सर ने जो एडिशनल है ना लिखवाया, ये नॉट रिक्वायर्ड, है ना। बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि डेवलपमेंट का इतने सारे डायनेमिक्स है ना, गोल ओरिएंटेड, चेंज ओरिएंटेड, ये सब तो ठीक है। इवोल्यूशन का पार्ट आ सकता है। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम क्या है, कंसेंसस नहीं था कि डेवलपमेंट स्ट्रेटजी क्या है, नॉन इकोलॉजिकल मॉडल था, एलियन अप्रोच था, टू मच एकेडमिक ओरिएंटेशन, इट शुड बी प्रैक्टिस सॉल्यूशन ओरिएंटेड, वो प्रॉब्लम। बाकी और प्रॉब्लम क्या है ना, कोल्ड वॉर स्ट्रेटजी का पार्ट था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर,
ड्रेन ऑफ रिसोर्स, तो वो सारे क्रिटिसिज्म को आपको लिखने हैं. डिस्पाइट प्रॉब्लम, इट हैज रेलेवेंस, इट हैज ब्रॉट सम रेडिकल चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस, टुडे इट इज मल्टी डायमेंशनल, है ना. तो उससे आपको कंक्लूड करना है. तो कंटेंट तो वही आ रहा है ना, जो डायरेक्ट है उसमें डायरेक्ट. प्रिज्मेटिक साला मॉडल इनेबल्स अस टू कॉप अप विद द मेनी प्रॉब्लम ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, है ना. इससे हमको कई सारी चीजें क्या हुआ, एक तो समझना, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. रिक्स हैज मेड अस सिंपलर, इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर दीज प्रॉब्लम्स एंड हाउ दीज प्रॉब्लम्स आर इट कैन बी टैकल्ड. तो बस वही रिक्स मॉडल का कैसे हेल्प करता है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन. तो बेसिक लिखना है रिक्स के प्रिज्मेटिक मॉडल पे. प्रॉब्लम क्या है, वही फॉर्मलिज्म, हेट्रोजेनिटी, ठीक है. तो ये प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है मॉडल, क्योंकि है ना सोसाइटी के बारे में बताता है, ह्यूरिस्टिक डिवाइस भी है. कंपैरिजन में क्या देख रहे हैं कि डेविएशंस क्यों हो रहा है, रिफॉर्म लॉ, है ना. तो दीज आर द सॉल्यूशंस दैट वर प्रपोज्ड बाय रिक्स. तो अब उसका थोड़ा लिमिटेशन भी हाईलाइट कर सकते हैं. स्कॉलर ने रिक्स को भी क्रिटिसाइज किया, तो दोज क्रिटिसिज्म यू कैन ब्रिंग आउट. ओके, बाद में कंक्लूजन में डिस्पाइट वीकनेस रेलेवेंस, दिस इज द कॉमन पैटर्न दैट वी सी. या सर हाँ प्लीज. सर सॉल्यूशन क्या है सर इन तीन प्रॉब्लम्स का? तीन प्रॉब्लम, क्या सोल क्या सॉल्यूशन दिया है सर इसने? सॉल्यूशन वही है कि देखो, जो क्रिटिसिज्म है ना प्रिज्मेटिक साला मॉडल, इट वाज ए स्टैटिक मॉडल, इट वाज, है ना. तो सॉल्यूशन में क्या देना कि भाई नॉन इकोलॉजिकल, जो एंटी डेवलपमेंट थेसिस के टाइम हमने जो अल्टरनेटिव मॉडल देखा, कैपेबिलिटी अप्रोच, है ना, नेटवर्क गवर्नेंस, न्यू मॉडल्स जो इमर्ज हो रहे हैं, दे आर काइंड ऑफ सॉल्यूशंस, है ना. सॉल्यूशंस वो है. और डिस्पाइट क्रिटिसिज्म हमको इसका रेलेवेंस दिखाना है कि दे हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. तो वो तो है ना लास्ट में कंक्लूजन हो गया. तो देखो जो भी है ना, जैसे हेट्रोजेनिटी, फॉर्मलिज्म, ओवरलैपिंग, ये हमें सोसाइटी को समझने में हेल्प करता है ना. दैट इज द मेन आइडिया, कि भाई समझने में हेल्प कर रहा है, और उस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया जाए. ERC 2 क्यों रिकमेंड करता है ना, कि भाई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में क्या क्या रिफॉर्म होना चाहिए, एंड उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी है ना. रिक्स आल्सो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी हमने क्या देखा कि अलग अलग लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है, मैल इंटीग्रेशन है. तो दोज आइडिया ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड वाला जो आइडिया है ना, तो हाउ दोज है ना प्रॉब्लम्स, तो रिक्स आल्सो सजेस्टेड सम सॉल्यूशन, बट स्टिल देयर इज फर्दर एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कोलैबोरेटिव अप्रोच, न्यू डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया को भी ला सकते हैं. न्यू पब्लिक कंपैरेटिव पॉवर्टी वाला जो थर्ड कॉन्फ्रेंस में जो आया था, ठीक है. सर इसका सेकंड पार्ट क्लियर नहीं हुआ सर, ये जो हाउ कैन दिस मॉडल अच्छा, एनेबल अस टू अब कोप अप. इसमें देखो, जैसे ना जितने भी मॉडल्स आपने क्या देखा यहाँ पे, प्रिज्मेटिक सोसाइटी का प्रॉब्लम हाईलाइट कर दिया, है ना, क्यों बाजार कंट्री वो ऑटोनॉमी है. अब उसका जो जैसे दिस मॉडल एक्ट एज ह्यूरिस्टिक डिवाइस फॉर एनालिसिस ऑफ, तो सिंपल डिस्क्राइब कर रहा है. कई बार क्या होता है सोशल फिनोमेना कोई जस्ट एक्सप्लेन कर रहा है ना. तो अब ये क्या होता है, हाउ डज दिस द मॉडल हेल्प, तो ये यूटिलिटी बता रहा है. यहाँ पे क्या है, दिस पार्ट इज यूटिलिटी ऑफ रिक्सियन आइडिया, है ना. तो दिस इज नथिंग बट द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ रिक्सियन आइडिया इज इंपॉर्टेंट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है. इसमें बस देखो अननेसेसरी स्टेटमेंट इतने सारे लिखे ना. सिंपल, इफ यू आर राइटिंग द रेलेवेंस ऑफ रिक्स, है ना, प्रिज्मेटिक सोसाइटी का रेलेवेंस भी लिखा रहे हैं, तो दैट इज हाउ हाउ मॉडल हैज हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है. यस सर. उतना अन्य मतलब क्या है ना, सिंपलीफाई, सिंपल कंटेंट ओरिएंटेड हो, दैट विल बी एनफ. तो impact of liberalization has necessitated to formulate a model of development which interweaves the role of both state and market. तो इसमें क्या है सिंपल, आप अभी जो लिबरलाइजेशन में क्या देखा 1990s में क्या देखा, नियो लिबरल स्टेट आ गया, तो उसमें क्या मार्केट को फ्रीडम दे दिया, ये दे दिया. तो उससे प्रॉब्लम क्या हुआ, इम्पैक्ट जो देखते हैं लिबरलाइजेशन में 2008 का क्राइसिस, 1997 का ईस्ट एशियन क्राइसिस. सो व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन हैज नेसेसिटेटेड कि वी शुड हैव ए इंटरव्यू ऑफ बोथ स्टेट वर्सेस मार्केट नहीं होना चाहिए, बल्कि स्टेट प्लस मार्केट होना चाहिए. न्यू वेवेरियन स्टेट, न्यू पब्लिक गवर्नेंस, न्यू, है ना. तो जो आज के कॉन्टेक्स्ट में स्टेट प्लस मार्केट बोथ शुड वर्क टुगेदर, पीपीपी मॉडल बेस्ट एग्जांपल, ठीक है. यानी ये समझना जरूरी, ये पार्ट इंपॉर्टेंट था. इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, हाउ द इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट हैज नेसेसिटेटेड द कंडीशन दैट बोथ स्टेट एंड मार्केट शुड कम टुगेदर. लिबरलाइजेशन में क्या देख रहे थे, रोल बैक ऑफ द स्टेट, विड्रॉल ऑफ द स्टेट, लेकिन बाद में क्या रियलाइज हुआ, ब्रिंग बैक स्टेट, एंड स्टेट एंड मार्केट बोथ शुड वर्क टुगेदर. तो दैट इज एन इंक्लूसिव नियो लिबरल मॉडल, ठीक है. तो सर सिंपल इसमें तो क्वेश्चन. एथिज्म और रिगनिज्म भी ला सकते हैं ना.
मतलब वो कॉन्टेक्स्ट हो, लिबरलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में चाहो तो ला सकते हो, नथिंग, एनपीएम मॉडल बेसिकली, एनपीएम जो आइडिया था वो लिबरलाइजेशन का ही पार्ट था। उसको लाने से क्या हुआ, इम्पैक्ट आया, है ना, द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, दैट मीन्स देयर वर लॉट ऑफ रिफॉर्म्स दैट वर इनिशिएटेड अंडर लिबरलाइजेशन एंड दैट हैज क्रिएटेड सम इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या निगेटिव इम्पैक्ट होगा। निगेटिव इम्पैक्ट को ओवरकम करने के लिए क्या हुआ कि एक ऐसा मॉडल चाहिए जिसमें स्टेट प्लस मार्केट बोथ शुड वर्क टुगेदर। ओके, ओके सर। उसके बाद अगला है प्रिज्मेटिक नेचर ऑफ इकोलॉजी हैज वर्कड एज ए बैरियर टू द इमर्जेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट एज अल्टरनेटिव। तो क्रिटिकल एग्जामिन करना है। तो अब क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप ना, जैसे सेम लाइक है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, पेट्रियार्कल माइंडसेट है, कई जगह है ना, कई सारे लॉट ऑफ बैरियर्स आर देयर। तो प्रिज्मेटिक नेचर ऑफ इकोलॉजी, जो इकोलॉजी सिस्टम है, कंटीजेंट फैक्टर्स है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम, एवरीथिंग इज इम्पैक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ हेल्प मूवमेंट। तो वही दिखाना है। तो प्रिंसिपल्स क्या है, बेसिक्स लिख दो प्रिंसिपल्स। प्रिज्मेटिक नेचर ऑफ इकोलॉजी कैसे बैरियर की तरह काम कर रहा है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, है ना, ये एक्सप्लेन करना। सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे अल्टरनेटिव मॉडल आ रहा है, फिर उसके चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जाए, राइट सम सजेशंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, एक्सपीरियंसेस, कुछ पॉजिटिव आउटकम्स, एक दो एग्जांपल लिख दिए। फिर उसके बाद हमने, हाँ, फिर इवोल्यूशन का मतलब इतना डिटेलिंग कर दिया सर ने, इट इज नॉट रिक्वायर, यहाँ पे जस्ट फॉर योर रेफरेंस यू कैन यूज देम। ठीक है, तो वही है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रिज्मेटिक नेचर का जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो हमने देखा, हेट्रोजेनिटी, है ना, और ओवरलैपिंग है। तो सजेशन क्या है, सिंपल सजेशंस क्या क्या होना चाहिए, है ना, कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को आगे बढ़ाया जाए, दैट इज आइडिया। टुडे इट इज द एरा ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप 2.0, न्यू पैराडाइम। तो वर्ल्ड बैंक, आई में वर्ल्ड बैंक ये सब भी अप्रिशिएट किया इंडिया के, है ना, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी ने भी अप्रिशिएट किया है, उसको आपको मेंशन करना है। फ्रिक्शन सर आइडिया, हाँ हाँ प्लीज। सर जैसे ये टेल वर्ड इसमें क्रिटिकली एग्जामिन है, तो इसको निगेट करना है क्या इस स्टेटमेंट को? देखो, एक वो आना चाहिए कि मतलब ऐसा नहीं है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव बीन सक्सेसफुल ना, देयर आर लॉट ऑफ सक्सेसफुल मॉडल। तो इट हैज, though it has worked as a barrier, but they many self help movement have been able to overcome these barriers, है ना। वो पार्ट भी मतलब क्रिटिकल एग्जामिन क्या होता है कि यू हैव टू निगेट द स्टेटमेंट इन जनरल। एक अप्रोच ये होता है कि क्रिटिकल एग्जामिन दे दिया, दैट मींस दिस स्टेटमेंट हैज टू बी निगेटेड, है ना, वो एक थीम होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम इट देयर आर सम प्रॉब्लम्स, है ना, तो दोनों एस्पेक्ट को दिखाना है कि भाई गो विद द स्टेटमेंट एंड काउंटर द स्टेटमेंट। ठीक है, with some example, critical examine means you have to bring out some best model, successful model, then only you can critically examine the statement। ठीक है ना। Yes, sir. फिर अगला है कि जो रिक्सियन मॉडल है, एज एन आर इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट दैट वेबरियन मॉडल माइट नॉट इंटायरली बी प्रेडिक्टिव ऑफ बिहेवियर इन द मोस्ट। अब वही सिंपल रिक्स ने जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या पता चला, सेम वेबरियन ब्यूरोक्रेसी, है ना, सेम वेबरियन ब्यूरोक्रेसी हैज बीन अडॉप्टेड बाय नॉन वेस्टर्न कंट्री, बट दे आर नॉट फंक्शनिंग इन द वे इट वाज एक्सपेक्टेड। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में क्या हुआ, देयर वाज लॉट ऑफ डेविएशन। तो यही बता रहा है रिक्स, रिक्स का जो मॉडल है दैट इज इंडिकेटिव ऑफ व्हाट, कि वेबरियन मॉडल इज नॉट इंटायरली प्रेडिक्टिव। जो हम बोलते थे रूल रेगुलेशन, स्टेबिलिटी होगा, लॉ एंड ऑर्डर होगा, रिजिड, है ना, रूल्स इंप्लीमेंटेशन होगा, दैट इज नॉट विजिबल। उसी को विथ एग्जांपल यू हैव टू एक्सप्लेन। लेकिन कुछ है ना, तो इसमें सिंपल क्या किया, एक्सप्लेन करना है रिक्सियल मॉडल ने कैसे प्रॉब्लम को हाईलाइट किया। लेकिन रिक्सियल मॉडल का भी तो क्रिटिसिज्म है ना, तो वो क्रिटिसिज्म को सिंपल मेंशन करना है। ठीक, अगला है कि एंटी डेवलपमेंट थीसिस, सिंपल प्रोपोगेट क्या करता है, आइडिया दैट डेवलपमेंट लैक्स डेफिनेटिव कंटेंट, इज अमीबा टाइप, इज इट ए वैलिड स्टेटमेंट, इसको सिंपल एक्सप्लेन करना है। तो एंटी डेवलपमेंट थीसिस क्या था, उसके बेसिक्स को लिखना है और एक्सप्लेन करना है व्हाई इट लैक्स द डेफिनेटिवनेस। क्योंकि एंटी डेवलपमेंट थीसिस इज नॉट ए होमोजेनस सेट ऑफ आइडियाज, lot of radical alternative models have been suggested, there is lack of consensus also within it। तो वही है लेकिंग डेफिनेटिवनेस और अमीबा टाइप, उसी को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, लेकिन उसका पोजीशन क्या था, रेडिकल, टू मच एक्सट्रीम था। तो वही आइडिया को दिखाना है कि एंटी बेसिक्स लिख दिए और अलग अलग मॉडल्स की बात की, उसमें क्यों डेफिनेटिव कंटेंट है, अमीबा टाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई फिक्स आइडिया नहीं है, वन सेट ऑफ आइडिया नहीं, इंटेलेक्चुअल, है ना, इम्पैसिव बोला रिक्स ने।
तो अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे जो क्रिटिसिज्म है ना, जो एंटी डेवलपमेंट थेसिस का हमने क्रिटिसिज्म देखा ना, ब्रिंग आउट दैट, मेंशन दैट विल बी सफिशिएंटली एक्सप्लेनिंग दिस टर्म्स, कि डेफिनेटिव कंटेंट नहीं हो, क्योंकि डिफरेंट मॉडल्स आ गए ना, अलग अलग पर्सपेक्टिव आ गया, नो कंसेंसस इज देयर दैट यू कैन ब्रिंग आउट। ठीक है, discuss how globalization has helped the field of comparative pivot to get its glory back after a phase of, अब देखो ग्लोबलाइजेशन में क्या देख रहे हैं, री इमर्जेंस ऑफ सीपीए। तो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी क्या ग्लोबलाइजेशन में, नो, कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दे आर कमिंग टुगेदर, देयर इज ग्लोबल सप्लाई चेन, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस एक दूसरे का एक्सचेंज हो रहा है, लर्निंग इज देयर। तो अगेन यू हैव टू डिस्कस द पॉजिटिव्स, हाउ ग्लोबलाइजेशन इज हेल्प रिवाइवल ऑफ द सीपीए। तो सीपीए का डिक्लाइन हुआ तभी तो रिवाइवल की बात हो रही है ना, हाउ इट इज हेल्पिंग से सीपीए इन गेटिंग द, तो वही बेसिक्स आपको लिखने हैं, है ना, बेसिक्स के बाद डिक्लाइन क्यों हुआ, फिर रीजन ऑफ री इमर्जेंस क्यों हो रहा है, सीपीए आज के कॉन्टेक्स्ट में क्यों री इमर्ज हुआ, उसको हाईलाइट करना, हाउ ग्लोबलाइजेशन इज इन्फ्लुएंसिंग दैट, इन व्हाट मैनर। सब्जेक्ट मैटर में आजकल क्या है, इतने सारे नए सब्जेक्ट मैटर आ गए। मेथड अप्रोच में जो थर्ड कॉन्फ्रेंस मेथोडोलॉजिकल प्लुरलिज्म की बात किया, है ना, कई सारे इंस्टीट्यूशंस और जर्नल्स भी इन्वॉल्व है। तो अगेन देयर आर मल्टीपल न्यू एरियाज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, तो दैट यू हैव टू ब्रिंग आउट। ठीक है, तो इस तरह से अपन आंसर लिख सकते हैं, थर्ड कॉन्फ्रेंस को भी मेंशन कर सकते हैं। The main distinction between administration in Western country and underdeveloped country doesn't lie in the differences in the socio-cultural heritage, but rather in the respective economic environment. अब इसको एग्जामिन करना है, you don't have to completely agree with the statement, you can counter it also. तो मेन डिस्टिंक्शन क्या है वेस्टर्न कंट्री में और अंडर डेवलप्ड कंट्री का, जो क्या है मेन डिस्टिंक्शन क्या है, doesn't lie in the socio-cultural heritage but in the इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये बता रहा है कि ऐसा सोशियो कल्चरल हेरिटेज में ज्यादा, है ना, मेन डिस्टिंक्शन किसके कारण हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, इट इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, है ना, डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड का जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है दैट इज डिफरेंट। यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ द इकोनॉमिक सब सिस्टम हैज इम्पैक्टेड द वर्किंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, एंड देन यू हैव टू आल्सो हाईलाइट एग्जामिन है, तो हाँ सोशो कल्चरल फैक्टर आल्सो इम्पैक्ट, वही रिक्शा जो या फेरल हेडी का सिस्टम एंड सब सिस्टम अप्रोच, economic factor is only one of the factor, apart from social and political factor are also impacting the working of administration. okay, तो उसी को दिखाना है बस, कुछ सम एग्जांपल है ना, एग्जांपल कोट करना है। लास्ट है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, वही गैंट है ना, जॉर्ज गैंट का स्टेटमेंट, पर्पस क्या है, लॉयल्टी किसके प्रति है, और एटीट्यूड क्या है, उसी को सिंपल एक्सप्लेन करना है ना। तो लेकिन उसमें चाहो तो, है ना, देयर आर अदर अल्टरनेटिव्स डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हैज बिकम मच ब्रॉडर, उसको लास्ट में लिख सकते हैं, सिंपल इसको एक्सप्लेन करना है ना, उसका मतलब क्या हुआ कि डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है वो बता दिए, और चेंज ओरिएंटेड गोल ओरिएंटेड। तो यहाँ पे लेकिन क्रिटिसिज्म वही कि डिस्पाइट सो मच डेवलपमेंट स्टिल इट इज ब्यूरोक्रेटिक, है ना, तो ये अभी तक ये पीपल सेंट्रिक नहीं हो पाया। ओके, तो देखो कंटेंट सेम है, only thing is you have to think what content is relevant to the demand of the question, है ना, you have to explain that. Yeah, anything to ask?